Heartiest welcome to everybody who are listening to us today. We have one of our favorite students of Arise Delhi who have cleared this exam in January 12th FMGE, and this was a group which stayed together throughout this 6 months of intense training. And we welcome everybody here, and we would like to know your journey, how this group formed, and how this group helped you all to clear this hurdle of FMGE exam. वार्म वेलकम टू एवरीबडी. कैसा लग रहा है? पहले आप लोग को एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देना, एंड प्लीज लेट मी नो योर नेम, विच यूनिवर्सिटी यू आर फ्रॉम, एंड विच प्लेस इन इंडिया. वी कैन स्टार्ट विद प्रणव. Yes, sir. I'm Dr. Pranav. I scored 226 on this FMG, January 2025, and my college name is Asian Medical Institute. ओके ओके. एंड कहाँ से हो प्रणव आप? आई थिंक सर मैं बिहार से हूँ, चंपारण से, पूर्वी चंपारण से. ओके. डॉक्टर आकाश, सम इंट्रोडक्शन फ्रॉम योर साइड. Yes, sir. Myself, Dr. Akash Dakar. Sir, मैं मध्य प्रदेश के विदिशा शहर से हूँ, and I'm also from Asian Medical Institute only. I scored 223 in this FMG exam. Okay. And Dr. Suneha Patel. Hello, sir. Myself Suneha Patel from UP, Allahabad, and also same college, Asian Medical Institute, and also I scored 204 marks in FMG. Nice, nice. Dr. Archana. Yes, sir. Myself, Archana. I scored 182 marks, and I am also from Asian Medical Institute. Okay. Dr. Zeenat. Hello, everyone. I am Dr. Zeenat, and I am from Asian Medical Institute, and I scored 175. And where are you from, Dr. Zeenat? Which place in the country? I am from Bihar, Siwan, Okay. Bihar. Okay. Dr. Sunil. Yes, sir. Myself, सुनील कुमार सर. मेरा स्कोर सर 170 था. और मैं भी सर एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ किर्गिस्तान से एमबीबीएस कंप्लीट हुआ था. एंड सर मैं यूपी इलाहाबाद से रहने वाला हूँ सर. नाइस नाइस. डॉक्टर अब्दुल्ला. जी सर. myself Dr. Abdullah Sheikh. Sir, I scored 183 marks in FMG exam. I am from Bihar, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी. और सर मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान से पास आउट हुआ सर. नाइस नाइस. एंड डॉक्टर नीतीश. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितेश कुमार है. I'm from Asian Medical Institute, and I'm living at the Bihar, sir, and I scored 182 marks in my first attempt, sir. Nice. I'll tell you what happened actually. These people clicked the photograph, and I happened to see this photograph. और ये लोग हमेशा मेरे को अराइज दिल्ली में एक साथ ही दिखते थे, in a common group of students. हमेशा वो एक दो rows occupy करके, and that is what I saw on the Insta, and all of them had cleared the exam. So I just wanted to know how this happened, and then they were tagging that we all grouped together had prepared, and they were telling me कि हमने ये photo लिया था साथ में, and we would post it once our results come down. So I really got really interested and keen to know exactly how this group worked for them, and that was an interesting story, an interesting picture also. And something about this, anybody would like to describe? How was this group formed actually? Actually, starting में मतलब जब हम लोग अपने कॉलेज में थे एशियन में, तो कुछ लोगों को जानते थे, बट यहाँ कुछ लोग नए मिले. तो स्टार्टिंग में लाइक डाउट पूछना और डिस्कशन से शुरू हुआ कि हाँ कंफर्टेबल है, साथ में बैठना शुरू किया. फिर उसके बाद डेली का होने लगा कि नहीं सही है ये ग्रुप. और ऐसा नहीं बस पढ़ते टाइम, लाइक ब्रेक में खाना पीना भी हुआ, कॉफी टी, वहां से स्टार्टिंग हुई कि सही है, चल रहा है सही. और ऐसे कोई मोटिवेट करते एक दूसरे को, कोई बार नहीं होगा तो हर कोई एक दूसरे को मोटिवेट किया, क्यों नहीं होगा, होगा जरूर होगा. तो वो चीज बहुत अच्छी थी. और ऐसा नहीं कि सब टॉपर्स ही हैं, लाइक जो टॉपर है वो एवरेज को कि नहीं होगा, तेरे से भी होगा, डाउट क्लियर करना, वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प की. आप लोग के मार्क्स देख के तो नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे एवरेज है? ओके, सारे बंदे इतना अच्छा स्कोर करे. लाइक फॉर मी दे यूज्ड टू लाइक, मैं बहुत ज्यादा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो डॉक्टर आकाश, डॉक्टर सुनेहा, अर्चना, ये तो मेरी लाइब्रेरी पार्टनर भी थी सर. तो हमेशा नहीं होगा होगा करके, मतलब कभी भी मतलब मोटिवेशन हमेशा फ्री में मिली है, कभी ऐसा नहीं कि नहीं सोचना ही नहीं है. डॉक्टर अब्दुल्ला, आप कुछ बता रहे थे? जी सर. एक्चुअली जो मेरा दोस्त है नितेश कुमार, तो हम लोग वहाँ किर्गिस्तान में भी क्लासमेट ही थे और फ्लैटमेट भी थे. और जब हमने अराइज लास्ट ईयर में अराइज आप लोग से आए थे ना, तो ज्वाइन करा था हम लोगों ने अराइज. तो उस समय भी हम लोग साथ में ही अराइज क्लास में साथ में बगल वाले बेंच पे साथ में बैठते भी थे.
तो हम लोग का प्लान हुआ कि RIS दिल्ली जाना है, वहीं क्लासेस लेनी है। तो इससे बात हुई, बोला कि हाँ सब चलेंगे, अभी ज्वाइन भी कर, हम लोग ज्वाइन कर लिया, फिर साथ में बैठने भी लगे। फिर धीरे करके ये भैया लोग मिले, मैम सब मिली, आकाश भैया मिले, प्रणव भैया मिले, सुनील, खासकर सुनील भैया मिले। मतलब सुनील भैया से मेरा ज्यादा बॉन्डिंग था, मतलब बातचीत करने में, हंसी मजाक में। और हमेशा मतलब उनसे मतलब मैं एक इस तरफ नितेश को बैठाता था, इस तरफ लेफ्ट साइड में सुनील भैया। अब कहीं भी अगर दूर भी बैठ के पकड़ लाता था इनको मैं कि आप मेरे बगल में बैठो। मतलब मेरा मन लगा था सर, और क्लास में सबका मन लगा रहता था। मैं क्लास में बहुत हंसी मजाक भी करता था, मतलब जितनी मैम लोग भी हैं सब। कभी कभी तो गुस्सा आ जाती थी, सुनिए मैम कितनी बार हमसे गुस्सा हुई कि ऐसा क्यों करते, मजाक क्यों करते हो। कभी कभी तो बात भी नहीं करती थी हमसे। तो सही ये सब लगा रहता था, मतलब हमेशा। और मेरा मतलब मैं बचपन से सर मजाकिया टाइप का हूँ सर, हमेशा किसी से भी मतलब अच्छे मूड में रहता था सर हमेशा। कभी टाइप का सर हम कर देते हैं सर इसकी तारीफ, ये खुद कर नहीं पा रहा है, हम कर देते हैं इसकी तारीफ। तो थोड़ा और भी लग रहा होगा अब्दुल्ला को। ये एक्चुअली सर एंकर था हमारे ग्रुप में, सबको बॉन्ड करके साथ में रखने के लिए। और जब भी कोई सीरियस नोट पे अपनी स्टडीज चल रही है, कुछ भी है, कोई सीरियस टॉपिक चल रहा है, तो उसमें जो है ईज आउट करने का काम अब्दुल्ला का ही था कि कोई ना कोई जोक भी अब्दुल्ला ही क्रैक करेगा, कोई कमेंट भी अब्दुल्ला ही क्रैक करेगा। सुबह सुबह आना था तो सबको पता चल जाता था कि नहीं अब्दुल्ला आ गया। और ये सिर्फ हमारे ग्रुप तक ही सीमित नहीं था, ये चीज मतलब पूरे क्लास में इसका ये था। इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी जॉली टाइप की थी। वही आई थिंक बेस्ट थिंग की रही हम लोगों के ग्रुप में कि हर पर्सनैलिटी और हर ऑरा के लोग थे, सबका एक अलग पर्सपेक्टिव भी था, सबका एक ऑरा था। तो उस चक्कर में थोड़ा ब्लेंड किया। हम लोग सेम नहीं है सारे, सबसे अच्छी बात है। मैं, सुनील और प्रणव हम लोग रूममेट है। हम लोग किर्गिस्तान में भी साथ में ही थे। फिर वहां पे जब यहाँ पे आए तो हम लोग रूममेट थे, तो हमने स्टार्टिंग में ये चीज सोच ली थी कि हम लोग वहाँ पे साथ ही में ज्वाइन करेंगे RIS। उसके बाद धीरे धीरे हमें इनिशियली हम लोग बैठना स्टार्ट हुए, ये लोग सारे मिले, तो ऐसे करके हो जाता था सर। उसके बाद फिर यही चीज चलती रही और फिर धीरे धीरे बॉन्डिंग अच्छी होती गई। शुरू से में बस बैठते थे, थोड़ी बहुत हेलो आए हो गई। फिर धीरे धीरे सर जब पता चला कि नहीं यार सारे एकदम सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, मतलब भले कितना भी हंसी मजाक चले, जब कोई टॉपिक चल रहा होता था तो एकदम सब सीरियस हो जाते थे। वो उस चक्कर में सर इसलिए वो ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी चलती गई। तो आज मेरे समझ में आया, ये क्लास में हमेशा समोसा समोसा कौन बोलते थे? शायद ये अब्दुल्ला सबसे ज्यादा अब्दुल्ला सर। मैं ढूंढ रहा था ये बंदे को मैं काफी दिन से। एक्चुअली हम लोग पूछने वाले थे सर, एक्चुअली हम लोग पूछने वाले थे कि सर को याद भी होगा या नहीं हमारा ग्रुप समोसे के लिए। नाइस नाइस। अरे सर सुनिया मैम को समोसा मिला नहीं था एक दिन, तो याद है सर आपके पास गई थी वो समोसा के लिए। हमारी सर हम लोगों को लग भी रहा था और बट सुनिया ने बोल दिया था, आपको ही बोल दिया था कि सर हमको नहीं मिला है। फिर आप दोबारा दिलवाए भी थे, आपको याद है, तो आपने बोला था। उसके बाद फिर अलग से बंदा आया था जिसको खिलाया था समोसा। अच्छा यार सर उसमें भी सुनिया नहीं पाई थी, उसमें भी नहीं, आधा पाई थी। I remember that day. होता था तो हंसी मजाक होता था, लेकिन कई चीजें मैं इन लोगों से, सब लोगों से मुझे कई चीजें रहता था कि जैसे कभी भी कोई चीज समझना हुआ, कुछ भी होता था, मुझे ज्यादातर जैसे एनाटॉमी की इमेजेस हो गई, ये सब सर डिस्कस कर देते थे, फिर मैं भूल जाती थी। मुझे बहुत था कि मैं चीजें जल्दी भूल जाती थी। तो लाइब्रेरी में साथ में थे ये आकाश और प्रणव लोग थे, सुनील भी थे। तो मुझे और अर्चना रूम में अगर मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि अर्चना मेरी रूममेट थी, तो जब मैं पढ़ती रहती थी तो अर्चना को बोलती तुम मुझे ये चीज समझाओ, मुझे नहीं समझ में आ रही है। और लाइब्रेरी में जब दिक्कत होती थी तो ये लोग साथ में रहते थे। तो आकाश और प्रणव तो मतलब मैं बहुत जल्दी, जैसे होता नहीं कि कुछ चीजें मुझसे एक क्वेश्चन गलत हो गया या फिर टेस्ट में मेरा नंबर अच्छा नहीं, तो मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी कि मेरा क्या होगा। तो ये लोग एकदम ऐसे बैठा के ऐसा नहीं सोचते हैं। प्रणव तो एकदम ऐसे बैठा के देखो ऐसा नहीं सोचते हैं, तुम जैसे लगी हो तुम ऐसे लगी रहो, फिर अच्छा ही रिजल्ट आएगा। एकदम ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए मोटिवेट करना और हर चीजों को पढ़ाना। मतलब मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में 50% अगर जो भी नंबर आया है उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि मुझे चीजें ज्यादातर बहुत चीजें होती थी जो मैं इन लोगों से ही पढ़ती थी। तो अर्चना बहुत ज्यादा रूम में पढ़ाती थी और ये लोग लाइब्रेरी में पढ़ाते थे। नाइस। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलना काफी जरूरी होता है। मैं भी क्लास में भी बोलता हूँ कि हमेशा एक ग्रुप के साथ पास होते हैं बच्चे और एक ग्रुप के साथ एक सक्सेस की तरफ जाते हैं। एंड आप लोग ने वो प्रूव किया है जिस तरह से 6 months ऑफ जर्नी है। और इसमें आप लोग के ग्रुप के बारे में बताइए, सबकी एक स्पेशलिटी, मे बी आप लोग अपने अपने साथी के बारे में कोई भी ऐसी चीज जो आप लोग को लगा कि
एक यूनिक थी, क्योंकि इतना क्लोजली आप लोग 6 मंथ्स तक थे साथ में एक दूसरे के, और वो भी इस तरह के टाइम पे जब इतना इंटेंस प्रिपरेशन होता है तो सारे पर्सनैलिटीज निकल के आते हैं। जी जैसा सर इतना ज्यादा इंटेंस था सिचुएशन, लेकिन सब एक जो सबसे अच्छा एक चीज था अब्दुल्ला, मतलब अब्दुल्ला नाम Trust ही buster. था, अब्दुल्ला पे स्माइल आ जाती थी सबको, सबसे ज्यादा स्पेशलाइज यही था। नहीं सर, ये तो नहीं हंसती थी, ये तो रोती रहती थी। अब्दुल्ला बहुत परेशान किया है, गुस्सा भी हो जाती थी, 2 दिन बात भी नहीं करती थी। हाँ सर, लास्ट में तो बात भी नहीं करती थी हमसे। और सर ये थोड़ा अपने आप को ना सही शॉर्ट कर रही है एक्चुअली, थोड़ी मॉडर्न से सुने हैं। ये जो बोल रही है ना कि हम जल्दी परेशान हो जाते थे, ये परेशाान होती थी सर 210 215 नंबर लाने के बाद। और रही बात हम लोगों को इसको समझाने की, तो सर ये स्टार्टिंग से पढ़ रही है फर्स्ट ईयर से, मुझे नहीं लगता सब लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, इसको समझाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। ये तो आ जाती थी, हमसे पूछ लेती थी। बाकी नॉलेज वाइज तो हमें लग रहा है हम में से किसी दो को भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो भी सुनेहा हमेशा आगे ही रहेगी। यस वो परेशान तो होती है, समोसा नहीं मिलेगी तो परेशान होगी, तो वो 10 मार्क नहीं मिलेंगे तो भी परेशान होगी। और सर हमारे आकाश भैया बहुत अच्छी शायरी पढ़ते हैं सर। अच्छा, लिखते भी हैं और बोलते भी हैं सर। नाइस। क्लास में भी परफॉर्म किए थे सर में ENT वाले सर, राजीव सर की क्लास में। अच्छा। आकाश, few lines we would like to hear. ऐसा स्पेशल क्या करे थे आप ऐसा? ऑफ कोर्स सर, मैं देख लेता हूँ, कुछ ट्राई कर लेता हूँ। मतलब ऐसे तो मैं ऐसा हर से पे लिखता हूँ, मुझे इस सिचुएशन पे यही चीज याद आती है कि अब जब पहले शुरुआत में था कि जब नए आए थे नए तो लगता था, पर अब जब सिलेक्ट हो गए तो आप जब देखते हैं कि कोई फोन करता है कि सर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बताइए, थोड़ी हेल्प कीजिए भैया, तो उसी पर एक शायरी है, मेरी नहीं है बट अच्छी शायरी थी, मुझे मौके पे याद आ गई तो मैं बता देता हूँ। शायरी कुछ ऐसी है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। एंड मोटिवेशन की साइड से बात करें तो एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं सर कि अगर ऐसे देखा जाए तो एट द एंड अपनी मेहनत होती है, सब मेहनत करते हैं, ऑफकोर्स कोचिंग मेहनत करती है, घर वाले मेहनत करते हैं, पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, एट द एंड अपनी ही है। तो वही एक शेर शायरी भी है कि ना किसी हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो एट द एंड सर मेहनत तो अपने को ही करनी पड़ेगी, और वो सबने की। और वही एक बात भी है कि इतना अच्छा रिजल्ट जो आया है उसमें ये नहीं कह सकते, मतलब फैक्टर्स होते हैं, आप कहें पेपर ये था जैसा भी था कुछ भी हो, बट एट द एंड अगर कोई मेहनत करता है तो वो रिजल्ट दिखता है। या बच्चों की मेहनत हमने देखा है, आप लोग की मेहनत हमने देखा है, रात भर इतना प्रेशर लेना, और इट्स नॉट इजी जर्नी फॉर टू सस्टेन दैट प्रेशर फॉर सच लॉन्ग 6 months एंड स्टफ। एंड देन वेरी नाइस डॉक्टर आकाश, एंड दोनों चीजें के लिए दोनों भी काफी अच्छे लगे, ऑल द न्यू एस्पिरेंट्स आल्सो, एंड आल्सो द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड द सक्सेस आल्सो। एंड डॉक्टर सुनील की क्या है खासियत, ये एनीबॉडी वुड वांट टू टेल? या सुनील की खासियत सर मैं बता देता हूँ, एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, एकेडमिक खासियत मैं बता देता हूँ सर, इसकी एनाटॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सर, नो डाउट अबाउट इट। तो एक समय ऐसा था कि फादर ऑफ एनाटॉमी बोलते थे सर, फादर ऑफ एनाटॉमी है सर, ऐसा कुछ नहीं सर, ये लोग मजे ले रहे हैं। ओरिएंटेशन जो था ना सर, विजुअल ओरिएंटेशन की बात करें अपन, याद होना तो अलग चीज है, रटने की कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे, जो विजुअल ओरिएंटेशन था, कोई चीज अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा, कोई फिगर समझ में नहीं आ रहा तो सुनील से पूछते थे और वो सर समझाता था तो समझ में भी आता था। और बाकी उसकी नॉन एकेडमिक चीजें सर वो अब्दुल्ला सबसे अच्छा बता सकता है, हालांकि हम लोग 6 साल के साथ हैं और अब्दुल्ला ज्यादा सही बता देगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी सर, पूरा ग्रुप इनको फादर बोल सकता। हाँ सर, फादर है वो। फादर ऑफ एनाटॉमी। नहीं सर, ऐसे भी नहीं सर, वैसे ही बोलते थे लोग, चीजों में आगे वो लोग क्लास में कुछ फादर। एक्चुअली क्या है सर ना कि हम लोग जब शुरू में थे वहाँ किर्गिस्तान में थे, लास्ट के 15-20 दिन, तो हम लोग ये डिसाइड किए थे कि हम लोग सिंगल रहेंगे, अकेले रहेंगे, उसमें ज्यादा मतलब स्कोर ज्यादा अच्छा लाएंगे या पढ़ेंगे अच्छा। तो हम लोगों का भ्रम तब दूर हुआ सर जब हम लोग आए यहाँ पे, लगभग 5-7 दिन मैं और आकाश और प्रणव था, हम लोग तीनों एक जगह बैठते थे शुरू के मतलब 1-2 दिन, लेकिन हम लोगों को वो किक नहीं मिली सर कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। तो हम लोग फिर धीरे धीरे देखे तो सुनेहा वगैरह भी बैठी थी, तो सुनेहा और ये जीनत और अर्चना ये लोग वहीं से जानते हैं हम लोगों को, मतलब हम लोग भी जानते थे। तो धीरे धीरे इन लोगों के पास आया, तो जब सर धीरे धीरे बीच में जब मस्ती चलती रही और उसके बाद पढ़ाई भी होती रही, तो धीरे धीरे सर लगा कि नहीं हम लोग गलत डिसीजन लिए थे कि अकेले रह के ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे ग्रुप बना हम लोगों का, अब्दुल्ला आया सर, अब्दुल्ला तो सर माशाल्लाह अलग ही आदमी है सर।
सर कैसा भी कोई सीरियस मूड में हो, अगर अब्दुल्ला वहां चला गया या तो गुस्सा होगी या तो खुश होगा। तो ऐसा ऐसा मतलब जॉली टाइप का था सर ये। तो नाइस। धीरे धीरे हम लोगों की ग्रुप बनी, तो जब ये सर 15-20 दिन या 1 महीना जब हम लोगों को ऐसे ऐसे चला, तो सर थोड़ा हम लोगों में इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ कि हम लोग मस्ती भी करते थे, पढ़ते भी थे, डिप्रेस भी नहीं होते थे। जैसे सर अकेले रहते हैं तो अकेले में बहुत सारी चीज माइंड में नाचती है कि सर ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो सर ये कभी दिमाग में आया ही नहीं कि नहीं होगा तो क्या होगा। हालांकि सर ऊपर ऊपर से आता था कि यार नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अंदर से साथ था में ये कहीं न कहीं था कि सर ये मेहनत हुई है तो होगा जरूर, ऐसा कुछ था सर। तो धीरे-धीरे सर ऐसे ग्रुप जब बना, तो सर जब ग्रुप में स्टडी हम लोग किए सर, और उसके बाद डिस्कशन बहुत ज़रूरी है सर। हम लोग डिस्कस भी करते थे आपस में। हम लोग पूरा अक्कू है सर और प्रणव रूममेट थे, तो ये लोग सर साथ में बैठ के हम लोग डिस्कस भी करते थे। सुनेहा भी आती थी सर, सुनेहा जो है गुस्सा हो जाती थी किसी दिन इसको नहीं बुलाते थे हम लोग तो डिस्कशन में। तो सर जब ग्रुप स्टडी सर हुई ना सर, तो अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो धीरे-धीरे हम लोग इसको कंटिन्यू कर दिए। इसको सर लास्ट में हम लोग बल्कि सर्जरी सबका लगभग जितने लोग हैं इसमें, सर्जरी लगभग सबका टफ था। तो सब अपना-अपना मतलब डिस्कस ही किए हैं। तो मैं और अक्कू और प्रणव साथ में सर बैठ के 3 दिन हम लोग 4-4 घंटे देते थे। 3 दिन में पूरी सर्जरी खत्म किए। ऐसा था सर कि एक आदमी पढ़ता था, 2 सुनता था। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें सर धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे होते थे सर, जहाँ ये होता था कि सर्जरी सबसे टफ है, वो ईज़ी लगने लगी हम लोगों को। और वो सर एग्ज़ाम में काम भी आया सर वो। तो ऐसे सर हम लोग आपकी आई थी? धीरे-धीरे ऐसे हम लाइफ लोग में आई भी थी सर्जरी? नाइस, नाइस, नाइस। हाँ सर, सर्जरी आई भी थी और सही हुई है। नाइस। सर एक्चुअली क्या है सर, आपसे हम लोग पहली बार रेडियो पढ़े, हमारे लिए भी सर पहली बार था। हम लोग भी कभी नहीं पढ़े थे। तो सबके सर लिए पहली इसको हम बार ही लोग होता है। सर ये हम लोग जो है ये सोचे थे कि रेडियो सर गलत नहीं होगा सवाल। तो रेडियो को हम लोग सर 2-3 बार रिवीजन कर लिए, इमेज याद कर लिए थे। तो वो सर अच्छा काम आया, मतलब एग्ज़ाम में अच्छा इम्प्रूवमेंट उसका हुआ सर। ऐसे धीरे-धीरे सब सब्जेक्ट सर ऐसे होता गया। नाइस, नाइस। एंड सर सब कहते थे कि आप बहुत सीरियस मोड में पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास में सबसे ज्यादा मजा आपकी क्लास में आया था। सच में तो मजा भी आया और अच्छा भी लगा, और क्वेश्चन भी बाद में बहुत अच्छा। सर भी तो बोले थे कि ये मेरी लाइफ में पहली मर्तबा इस क्लास में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ सर बोले जब हम थे लोग कि चिल्ला पहली चिल्ला बार के पहली आई बार वो था रिमेम्बर कि मेरे को इतना डिस्टर्ब तो कोई नहीं कर रहे थे क्लास में, इतने हंसी मजाक में सुन भी रहे थे और हंसी मजाक भी चल रहा था। मैं बोला इतना चिल बैच मेरे साथ, वो भी मेरी क्लास में ऐसा कैसा बिहेव हो रहा है बोल। सर जबकि अब्दुल्ला सर ये भी बोल रहे थे कि सर ये भी बोल रहे थे कि कोई हमसे डर भी नहीं रहा है। ये पहला बैच है। सर की लाइन थी कि दोबारा दिख मत जाना, दोबारा तुम लोग को मैं क्लास में नहीं देखना चाहता हूँ। वही नहीं हुआ देखेंगे सर। सर। रियली हैप्पी एंड यादगार था आप लोग के साथ, द होल जर्नी एंड अराइज रिलीफ। एंड आई रिमेम्बर ऑल योर फेसेस देयर, एंड वो बिल्कुल फैकल्टी के बिल्कुल नजर में रहते थे आप लोग, बिल्कुल ऑन द होल प्लेस भी ऐसे ऑक्यूपाई करते थे कि फैकल्टी पूरा दिखना है, क्योंकि फैकल्टी को आप दिख रहे हैं और आपको फैकल्टी दिख रहा है। नाइस। एंड समथिंग अबाउट अर्चना, who would tell सर about अर्चना बहुत शांत रहती थी हमेशा से, कि अर्चना का ये था कि हाँ अगर सब लोग जो बात कर रहे हैं ना उससे त्रस्त निकाल के मेरे को बता दो, मैं अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी, और मेरे को त्रस्त चाहिए उसका कि हाँ क्या क्या बात हुआ, क्या क्या डिस्कशन हुआ, कोई क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो गया अब बता दो, कोई जो डिस्कस करा था उसी से आगे पूछ लेगी। और अपना वो उसका एक डेली रूटीन था कि वो क्वेश्चन डेली करती रहती थी अपना, और उसको मतलब कोई भी टॉपिक को पढ़ा दिया गया तो उसका क्वेश्चन उसके पास कंप्लीट होता था, उसका वो कंसेप्ट उसी दिन पढ़ लेती थी। इससे ना वो उससे हम लोग सीखे ना ये सर कि वो डेली पढ़ती थी, और वो डेली वाला जो डिसिप्लिन है ना उसके पास था हमेशा से। अर्चना हुई और जीनत हुई, सुनेहा हुई, तीनों लड़कियां जो थी, हम लोग जो वाइज थे वो रूटीन वाइज नहीं चलते थे, डिसिप्लिन नहीं थे, बट ये लोग डिसिप्लिन सिखाया हम लोग को, ये लोग डिसिप्लिन कैसे था। खासकर जो सुनेहा थी तो वो उसने ना कि उसने सब कुछ पढ़ लिया था सर, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग उसने पढ़ लिया था। तो उससे बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला था कि मेरे बगल में लाइब्रेरी में बैठती थी, हमेशा आती थी, रोती थी, हमेशा रोती थी सर, वो रोती थी नहीं हमेशा रोती थी सर। लास्ट एग्जाम के दिन के पहले का मेरे को याद है सर, मैंने उसको ये बोला है तुम 250 क्रॉस कर सकती हो, मुझे लगता है कि वो 250 क्रॉस कर सकती है अभी भी सर, क्योंकि उसके पास इतना कंसेप्ट है कि वो आराम से कर सकती है, बट वो जल्दी होता है ना सर कि वो घबरा जाती है थोड़ा सा। तो मैं उसको बराबर यही करता था कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि हमारी जब इतने दिन के इंटरेक्शन के बाद हमको एक दूसरे की वीकनेसेस और एक्सपर्टीज के बारे में जानते हैं कि हाँ
कौन क्या है, कितने मास्टर्स किए हुए हैं। तो हमको पता था, हम लोग ये रिमेम्बर है मेरे को कि हम लोग लास्ट टाइम लाइब्रेरी में, मैं जा रहा था, लखनऊ था, मेरा और सुनील का सेंटर लखनऊ था। तो मैं, जीनत, आकाश, अब्दुल्ला और नीतीश नहीं थे, बाकी ये लोग, हम लोग सारे लोग एक ही लाइब्रेरी में थे। तो हम सारे लोग एक पार्टी, छोटा पार्टी किए समोसा का सर, और उसके बाद से समोसा खाए, वहां पे हम लोग डिस्कस किए क्या करना है, डू एंड डोंट, मतलब क्या करना है एग्जाम में, क्या नहीं करना है। हम लोग एक दूसरे को बोले कि हम लोग कर सकते हैं, सब अच्छा जाएगा, और अच्छा गया सर। सर लास्ट डे था, मेरे को याद है, सारे हम लोग इंक्लूड, छोटा सा गैदरिंग था, बस सुनील का एक ही वर्ड था कि ऐसा कुछ करना कि पूरा ग्रुप निकले। फिर मेरे को था कि चलो ऐसा ही कुछ करना। जब भी फोटो क्लिक होती थी तब मेरे को लगता था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पूरा निकल पाएंगे या नहीं पाएंगे। बट जब रिजल्ट आया तो मैं सबसे पहले अपना लिस्ट देखी, फिर पूरे ग्रुप का कि ग्रुप में से कोई तो रह तो नहीं गया। फिर था कि नहीं, सब निकल गए। और फिर नीतीश था, वो बोलता था, मैं बड़ी परेशान रहती थी तो बोलता था मैम इतना परेशान नहीं हो जाएगा हो जाएगा। तो एट लास्ट स्टार्टिंग में बहुत परेशान रहती थी, नंबर जैसे अगर अप टू द मार्क नहीं आ रहा या फिर सबका ज्यादा आ रहा है तो ये काफी डिस्टर्ब थी कि यार मेरा कैसे हो रहा, नहीं आ रहा। मैं इनसे बहुत ही बार इंटरेक्ट करा कि मैम हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग फेज में है, धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा। हमारा भी वैसा ही आ रहा, हमारा अब्दुल्ला, अर्चना मैम का सबको सेम आता था, और ये पढ़ना भैया हो गया, काश भैया हो गया, ये लोग को था ज्यादा आता था। हम लोग बोलते थे कि होगा, हम लोग का भी होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा करेंगे, धीरे धीरे होने लगेगा। तो बहुत सारी मैम बहुत मतलब लोग एक वो रहती थी कि नहीं होगा, बहुत डिस्टर्ब रहती थी, फिर ठीक होने लगा बाद में। तो मैं अर्चना के साथ में रही हूँ, तो मेरा और अर्चना की बॉन्डिंग, जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियां फ्रेंड नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। जैसे मैं और अर्चना साथ में, मैं सबसे ज्यादा वो मतलब होता नहीं कि हर बात पे बोलना, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और अर्चना एकदम शांत रहती है। तो जब भी होता था रूम में भी पढ़ाई को लेके कुछ भी होता था तो मैं पूरा बोलती थी, फिर उसका जो फाइनल रिजल्ट होता था, ठीक नहीं देखो कॉन्सेप्ट मेन ये है, तुम इधर उधर कुछ भी बोल लो, मेन कॉन्सेप्ट ये है, तो अर्चना करती थी चीजों को कंसाइज करने का, हर चीज एकदम मैनर वाइज। अर्चना पूरी मैनर में हर चीज होता ना कि एक सिस्टम वाइज रहना, और मैं एकदम सिस्टम के कुछ भी, ये था। नाइस नाइस नाइस। सर ये लोग मेरे को क्लासरूम में भी बहुत, कोई ऐसा एग्जाम्पल आता था पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये मेरे को बहुत टीज करते थे ये सारे के सारे। और ऐसा नहीं कि धीरे बोलना, पूरी क्लास में इतनी तेज से चिल्ला के बोलना मेरा नाम, मेरे को लगता था क्यों। तो ये बहुत ग्रुप में चलता था फनी। प्रणव को भी बहुत मजाक के साथ लेते थे, कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाता था तो प्रणव का नाम जाता था, तो था सब बहुत फनी था सर ग्रुप। सर यहाँ तक कि जीनत का हम लोग जुनैद भाई नाम रख दिए थे सर। असल में हुआ यूं था सर कि एक बार सुनील भैया के मुंह से निकल गया था जुनैद नाम, उनको पता नहीं था स्टार्टिंग में, तो मुंह से निकल गया जुनैद, तो तब से जुनैद भाई नाम पड़ गया उनके। हम लोग सर पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी बहुत किए थे सर वहाँ पे, बहुत ज्यादा सर। एक होता है ना सर कि नहीं 24 घंटा पढ़ते, क्लास में आओ पढ़वे करो, पूरा एकदम लगे रहो, ऐसा नहीं था सर। अगर कंसेप्ट अगर सर समझा रहे हैं तो उसको पूरा समझना है, बाकी मौज मस्ती चल रहा है पूरा भरपूर करते थे सर। खासकर जैसे जो सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे सब लोगों ने, हम लोग क्या सेम ही बैच से थे वहां से, जैसे साइकेट्री हो गया, नजीम सर की क्लास तो 3 दिन की जो थी ना, बस वो पता रहता था, इवन ये भी पता रहता था कि क्या एग्जाम्पल आने वाला है, तो सब कुछ था। तो उसमें जो एंजॉयमेंट होती थी, जो टॉपिक जैसे पियान सर से पढ़ लिए थे उनकी क्लास में हालांकि नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी, बट बाकी नदीम सर की क्लास में एकदम चिल रहता था, तो उसमें चलता रहता था सर। मैं समझ सकता हूँ, लगता था कि नहीं अब कॉन्सेप्ट आ रहा है या फिर कोई। मेरी क्लास में इतनी मस्ती आपकी क्लास में सकता हूँ मैं कि आप लोग नदीम सर की क्लास में क्या करे होंगे। सर मेरा दोस्त जो नदीम सर की क्लास सर कहानी थी, ऐसा आंख बंद करके कहानी सुनने वाली क्लास थी सर उनकी, ऐसा था सर बैठ के सुनते रहो। नाइस नाइस। सर मेरा जो दोस्त है नीतीश सर, तो ये मेरा दोस्त है सर, इसकी बहुत कहानी बहुत लंबी, लेकिन सर शॉर्ट में समझा देता हूँ सर। इसका पापा जो है वो मेस में काम करते हैं सर, मतलब मेस चलाते हैं सर। सारा बात झूठ है सर, ये लोग मजाक ये क्या मतलब मैं कैसे समझूं? यादव में से ना सर, आपने सुना होगा यादव में। अच्छा इसी का है सर अब्दुल्ला वो। एक्चुअली सर मैं रहता नहीं था वहाँ पे, एक्चुअली सर मैं दूर रहता था, मैं मेट्रो से हमेशा डेली ट्रेवल करता था, मैं भैया के पास रहता था, तो खाना वाना मैं लेकर आता था अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि अब्दुल्ला मेरी सीट रखता था। तो मैं खाना लेकर आता था,
तो हम लोग सब साथ में खाते थे, तो इसलिए मेरे को सब बोलने लगा कि मेस वाला ऐसे करके सर। सर एक सिस्टम बढ़िया था सर, एक जो मतलब कह सकते हैं सर, खाना हम दोनों खाते थे सर, और जो भी क्लास में हम ग्रुप में जो भी है बैठे रहे, अगर सुनेहा मैम लाई है वो तो हर रोज लाती थी कुछ ना कुछ खाने का, तो जबरदस्ती बुला बुला के अब्दुल्ला ही खा लो, या हम नीतीश भी लाया तो बुला बुला कर सबको एक दूसरे बांट के खाते थे सर हमेशा। कोई अगर सर गुजर रहे हैं बगल से, अगर लाइक सलमान सर गुजर रहे हैं, तो जैसे हम लोग बगल रास्ते के बगल में बैठते थे हमेशा, तो सर प्लीज थोड़ा सा ले लीजिए, तो मतलब सबको इनवाइट भी करते थे सर हमेशा। एक बार नदीम सर भी आए, तो मैंने कहा, मतलब मैं जानता हूँ नदीम सर कहाँ से, बिहार से ही, मेरे बगल से ही थे, तो मैंने कहा सर ये आपके यहाँ से आया, नाम जाएगा, नाम बताया, तो अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा लेके खा लिए थे, मतलब ऐसे ही थोड़ा टेस्ट कर लिए थे। नाइस नाइस। आई थिंक एक काफी सपोर्ट सिस्टम हो जाता है सारी चीजों के लिए, उसमें जो प्रेशर है ना थोड़ा सा लाइट डाउन हो जाता है, और एक एकेडमिक ग्रुप है जो पढ़ाई को भी उतना सीरियसली लेते हैं, तो आई थिंक इट गिव्स अ लॉट ऑफ डायरेक्शन टू द होल जर्नी। कि मैं बोलता हूँ कि इफ यू हैव टू स्टडी फॉर लॉन्ग, यू हैव टू स्टडी टुगेदर, एंड एक साथ आइसोलेटेड होंगे तो वो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ प्रेशर और एंजाइटी आ जाता है, एंड इट्स नॉट इजी टू माहौल का फर्क पड़ता है सर। ट्रू ट्रू। सर माहौल इसमें सबसे ज्यादा बंक कौन करते थे आपकी क्लास में? क्लासेस को बंक कौन करते थे? क्लास तो कोई नहीं किया, कोई नहीं सर, कोई नहीं छोड़ा है सर, टोटल क्लास करा था हम लोग के साथ, मेन क्लास किसी ने नहीं छोड़ा सर। नाइस 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 नाइस। सर उसका भी श्रेय जो है ना मेनली ये लड़कियों को जाता है तीनों को, क्योंकि हम लोग बहुत लेट आते थे, मैं तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत टाइम पे आ जाता था। होता ये था कि अगर मैं 8 बजे रूम से निकल रहा हूँ नहा धो के क्लास के लिए, तो मैं निकलते वक्त बोलता था सुनील को और प्रणव को कि भाई उठ जाओ यार क्लास चलना है, तो मेरे करीबन 45 मिनट बाद ये लोग आते थे, और लड़कियां मेरे भी 30 मिनट पहले आ जाती थी। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो 6 मंथ की जर्नी है ना, उसमें इन लोगों ने जो सीट्स रोकी हैं, 8-8 9 सीट्स पर किताबें रख रखी है, कभी बुक्स हो गई एक दूसरे की, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सर। वो एकदम रेगुलर जो सब्जेक्ट बुक्स क्लासेस चलती नहीं थी, वो सब्जेक्ट की बुक रखी रहती थी वहां पे, कभी कभी वो भैया स्टाफ आते थे, बोलते थे मैम ये क्या है, ये कौन सा किताब रखा है आपने, ये क्या रखा है। सर प्रियांश सर की एक ही लाइन होती थी, आप अपने लिए रखो, अपनी फैमिली के लिए नहीं रखो सीट, पूरी फैमिली नहीं बैठेगी यहाँ। तो ये था सर का डायलॉग कि पूरी बेंच आप रोक लेते हो सब फैमिली के लिए। इसलिए वो पूरा स्टाफ को झेलना पड़ता है सारा। हाँ बिल्कुल। नहीं अगर कंप्लेन कोई नहीं करे तो तब नहीं झेलना पड़ता, अगर कोई बच्चा आया बोल दिया सर देखिए ऐसी बात है, तो एक आध महीने बाद तो लोग भी हैबिचुअल हो गए थे सर, ठीक हो जाते हैं सर। ये सब सिर्फ स्टार्टिंग में होता है सर, स्टार्टिंग 1 महीने बस, उसके बाद कुछ नहीं होता, सब बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, फिर जहाँ से जो बैठते फिर वहीं बैठने लगते हैं। उसके बाद अगर बाकी अलग बैठ जाते थे, एक बार मुझे याद है कि मेरी तबीयत नहीं सही थी, मैं अलग बैठ गई थी क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी, साथ में रहते थे तो बोलते रहते थे, थ्रोट पेन था तो मैं अलग बैठ गई। उस दिन सारे आधे क्लास मुझसे पूछने तुम आज अलग क्यों बैठी हो, मतलब कुछ अलग हो गया। हम लोगों का ग्रुप बहुत फेमस हो गया था सर एक्चुअली। अच्छा। अगर कोई सर उसमें से इधर उधर चला जाता था तो सब बाहरी के लोग पूछते थे, जैसे दूर कोई बैठा वो पूछता था, कुछ बात हो गई ग्रुप में क्या कि वो वहां बैठा है, ऐसा था सर। बहुत प्यार था यार। हम लोग ज्यादा शोर भी मचाते थे, थोड़ा हल्ला भी करते थे हम लोग, थोड़ा मस्ती भी करते थे सर। इवन सब टीचर लगभग वो 2 रो जो हम लोगों को सर वो एक बार देखते जरूर थे, पूरा वो रो जो 2 रो था हम लोगों का, ऐसा था सर। नाइस। ये होता है ना यार, ग्रुप में जब पढ़ते हैं तो इट्स, चलो आप लोग को तो एक एकेडमिक ग्रुप था, एक अच्छा था, लेकिन कभी कभार कई सारे बातों में आ जाते, डिस्ट्रैक्शंस में आ जाते, इस चीज को कैसा रोकते थे आप लोग? लाइक मैं देखता हूँ कि बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए 3-4 दिन पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ और चीज की बात हो रही है, कोई डिस्ट्रैक्शंस हो जा रहे हैं। हमारे बीच में सर एक गोल था कि हाँ हमको करना है ये चीजें, और ये बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया गया, बहुत स्ट्रांगली। मतलब हमारे बीच में कुछ और की बातें नहीं होती थी, मस्ती अलग चीज है, लेकिन जब हम सीरियस नोट पे आते थे, जब भी हम सीरियस नोट पे आए, हमारी एकेडमिक्स की बातें मोस्टली हुई है, 90% एकेडमिक्स की बात हुई है, 10% जो मस्ती अभी हो रही है सर, इतनी वो पूरे क्लास निकल के आ रही है पूरे पीरियड की, बट ये इतना डेली नहीं हो रही थी, कुछ चीजें धीरे धीरे हो रही थी। बट वो कभी सुनेहा कोई क्वेश्चन लेके आ गई, उसमें कोई 1-2 कोई जोक निकल के आ गया तो हो गया, उसी पे जोक आ गया। बट हमारी जो चीजें थी कि हाँ एक कंसेप्ट अगर नहीं आ रहा है, कल पढ़ाया गया है, इसको समझ नहीं आया किसी को आज, तो वो आकाश बता रहा है तो सब उसके पास जाके पूरे भीड़ लगाए हुए हैं, सुन रहे हैं सब के सब। तो हमारे पॉलिटिक्स होती नहीं थी और कोई और बातें होती नहीं थी, और सीधे सिंपल था कि हम यहाँ पे है जिस काम के लिए, बिना बताए सर। इसमें मतलब वो अनस्पोकन रूल था कि हाँ, अनस्पोकन रूल था कि हाँ भाई तुमको जो करना है वो कर लो।
तो यहाँ सब कोई अपने हिसाब से बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से वो काम कर रहा था, अब बिना बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। हम मेरे को कोई कंसेप्ट अगर नहीं आ रहा है तो सामने से बिना झिझक बेझिझक हम उसको पूछ ले रहा है, वो बता भी रहा है, कोई मजे नहीं ले रहा है कि हाँ तुमको ये कैसे नहीं आ सकता है। हाँ, मैं अगर आकाश को नहीं आ सकता है तो आकाश पूछता था हमसे आके कि इसको कैसे हो सकता था। कोई एक दूसरे को ना ओवर शेडो करते थे, ना उसको कम समझते थे, ना कभी कम है हम लोग एक दूसरे में। और ये चीज हम लोग को दोनों को सबको हेल्प किया काफी चीजें में कि हाँ हम एक ग्रुप के रूप में आगे भी आ रहे। नाइस आई थिंक सर हम लोगों को सर मस्ती करने के लिए सर डेली जो है 40 से 45 मिनट हम लोग जाते थे चाय पीने। तो वो अलग ग्रुप था सर, हम लोग ग्रुप बनाए थे, तो उसमें सर कम से कम 8-9 लोग थे। तो बाद में सर सुनेहा भी ज्वाइन की, 1-2 दिन जुनैद भी गई और अर्चना तो नहीं गई सर। तो हम लोग वो ग्रुप अलग बनाए थे सर। तो उसमें जगह सर 40 मिनट हम लोग जाते थे, चाय पीते थे और मस्त जो है वो मस्ती करते थे, पूरा एकदम हंसी ठिठोला होता था सर। उसके बाद जो है फिर आते थे तो हम लोग फिर वही सीरियस मोड पे अपना लाइब्रेरी में बैठ जाते थे, तो वहां पढ़ते थे सर। वो वाले ग्रुप ही सर जो 8 लोग थे उसमें से सर सबका हो गया सर, एक का नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया था उसमें सर। वो अलग ग्रुप थी सर। नाइस सर मैं मतलब मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ कॉलेज में भी, कहीं पे भी। तो जैसे मैं अराइज में आया तो स्टार्टिंग में सर लाइक जो सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लिया, जो समझ में नहीं आया तो फिर टेंशन होने लगता था कि भाई टाइम भी नहीं है, कब समझूंगा, कब क्वेश्चन करूंगा, वगैरह वगैरह, बहुत टेंशन होता था। और सर डिस्ट्रैक्शन भी था स्टार्टिंग में सर। अब लाइक रात में लाइब्रेरी से आए, थोड़ा फोन ले लिया हाथ में, रील्स चलने लगी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। तो सर अब फिर कल होकर के सर रिग्रेट भी होता था कि इतना टाइम जा रहा है यार। लेकिन सर फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे अब्बा अब्बा से बहुत प्यार करता हूँ मैं, तो मेरे अब्बा का सब दिमाग में चलने लगा। और मैं सर घर का बड़ा लड़का हूँ तो थोड़ा प्रेशर भी रहता है। हालांकि कोई मुझे कुछ बोलने वाला कोई कुछ नहीं है, कोई अगर अल्लाह ने अगर ऐसा ना हो, अगर मेरा एग्जाम नहीं होता तो मुझे कोई बोलता नहीं कि तुमने एग्जाम क्यों नहीं निकाला। लेकिन फिर भी ये सर एक थोड़ा ये रहता है ना सर, तो अपने अब्बा को हमेशा याद कर लेता था, दिमाग में चलने लगते थे मेरे अब्बा हमेशा। तो ये पॉजिटिविटी मिली। और जैसे फोन चला रहा हूँ, लाइक रील चला रहा हूँ, तुम फिर बाद में रिग्रेट होने लगा। फिर मैंने कम किया, धीरे धीरे करके आधे घंटे पे ले आया, फिर लास्ट में आकर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया लगभग लास्ट। और सर एक बात और सर कि जो प्रियांश सर ने कहा था कि मुझे वो बहुत फायदा हुआ सर, बहुत ज्यादा। लास्ट का जो 2 महीना जो छुट्टी हुई थी सर, जो क्लासेस खत्म हो गई थी, तो मेरा जो मेन जो अच्छा समय गुजरा है ये 2 महीना सर। क्योंकि इस दो महीने में सर मैं अर्श से लेके फर्स्ट से लेके अर्श पे चला गया सर, इतना फायदा हुआ सर। और ऐसा क्या चीज करे जो इतना सर रिवीजन बार रिवीजन। सर ने कहा था कि फास्ट रिवीजन करो, ये नहीं कि एक बार बैठ गए तो 4 दिन बैठेंगे सब्जेक्ट में। उन्होंने बताया था कि छोटे सब्जेक्ट को लाइक धर्म हो गया, ऑर्थो हो गया, सबको एक दिन में 2 सब्जेक्ट करना, बड़े सब्जेक्ट को 1 दिन में 1 करना। तो वैसे ही सेम मैंने लास्ट के 1 महीने मैंने शेड्यूल बनाया था 10 दिसंबर से लेकर और 11 जनवरी तक का। 2 रिवीजन मैंने सर लिखा था उसमें, 2 रिवीजन मुझे करना है और मैंने कर लिया था सर। और लास्ट के 1 महीने में सर नीट पीजी एफएमजी के सारे क्वेश्चन लगाए विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है सर। और यही सब रहा सर। और आप लोगों का मोटिवेशन था और माँ बाप की दुआएं थी, सबकी दुआएं थी, सबके आशीर्वाद था और टीचर्स का सहारा था, सब हो गया सर। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतना मार्क्स आ सकता है, मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन सोबत का असर होता है। जी सर जी। मैं एग्जाम देके भी जब फर्स्ट सिटिंग निकला तो सबने कहा पेपर टफ था, ये था वो, तो मैंने कहा नहीं मेरा अच्छा गया, मेरा एवरेज था, मेरा अच्छा, क्योंकि मुझे लगा था मैंने सही किया है उसमें। सेकंड पेपर भी मैं ऐसा ही किया, मैंने कहा एवरेज था मेरा, हो गया। और मैंने रिकॉल भी मिलाया था बाद में, तो 169 के करीब आ रहे थे। फिर मैंने कहा कि चलो 10-15 नंबर तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही, तो 183 मेरे आ गए सर। तो ये बातें थी सर। Nice. Somebody can explain about Dr. Zeenat's contribution. How was Dr. Zeenat involved in the group? Yes, sir. उनका हमेशा सर में दर्द रहता था, हमेशा वो पैरासिटामोल के क्रॉसिन और एक सऊदीया से सर अबू फास आता है, एक लिक्विड आता है सर, वो लेके रखी थी। किसी के अगर सर में दर्द हो तो दवा उनको मिल जाएगी और सब वो लिक्विड भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर क्लास में किसी को दवा चाहिए होगी सब किसी उनसे कॉन्टेक्ट कर ले बस। नहीं सर, लेकिन ये सोनिया पास बैठती थी। हाँ सोनिया एशियन में भी जीनत की डिग्री थी। जीनत हमारे जितना बोलती नहीं थी, लेकिन जीनत और रचना सीरियस थी। ये चीज था, जीनत हमेशा कोशिश करती थी कि जैसे कुछ भी होता था, अगर कोई इधर उधर, जैसे मैं अगर इधर उधर ज्यादा बातें भी करती थी तो जीनत बोल देती थी कि देखो भी पढ़ाई कर लो थोड़ी देर, उसके बाद तब तुम बोल लेना।
तो फिर ये था कि हमेशा ये था कि नहीं इधर उधर मत करो, पढ़ाई करो, अभी जो करना है प्रेजेंट में उसको करो। तो ये हमेशा एकदम होता नहीं कि गोल टारगेट हो इस जैसे उस पे हमेशा फोकस रहती थी, फोकस बहुत थी। ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे सीनत और अर्चना दोनों में, कि दोनों बहुत ज्यादा फोकस थी कि कोई चीज है अभी जैसे क्लास में जैसे होता नहीं था कि आधे घंटे का ब्रेक है तो मैं उसमें सिर्फ खाती ही रहती थी, बात करती थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ये लोग ऐसा वो करते थे कि नहीं 10 मिनट में तुम खा लो, उसके बाद तुम रिवाइज कर लो, क्वेश्चन कर लो। अर्चना भी थी कि हाँ नहीं क्वेश्चन कर लो। तो फिर लास्ट में ये हो गया था कि हाँ मैं भी थोड़ा थोड़ा साथ में लोग करने लगी थी कि ये लोग मतलब हमेशा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीच में रिवाइज का वो जो नहीं होता है कि समय जो 30 मिनट का होता है तो उसको यूटिलाइज करने का ये लोग बहुत अच्छा वो करते थे। नाइस नाइस। सर ये झूठ बोल रही है प्रणव सर, के बारे में ये झूठ बोल रही है सर एकदम झूठ सर बोल ये रही झूठ है बोल रही है। यही क्वेश्चन करती थी सर ज्यादा, सबसे ज्यादा ये दिन में 100-150 क्वेश्चन कर लेती होगी सर, समझा रहा है तू भी क्वेश्चन करती रहती थी और अब बोल रही है कि हम कम कर रहे हैं। सर इसका देख के सर ये जीनत और अर्चना ने चालू किया सर क्वेश्चन लगाना, ये झूठ बोल रही है सर, उन लोगों को देख के हम चालू किए हैं सर। इन द सेंस वो हंसी मजाक अलग है सर, लेकिन वो तीनों लड़कियां जो डिसिप्लिन दी है ना, वो ग्रुप इसी पे चला है सर। और जो मैं बता रहा हूँ ना, तीनों लड़कियां का डिसिप्लिन था वो वेल सस्टेन कर रहा था ग्रुप के पूरे माहौल को। कि अगर जीनत ने डांटा है लोगों को, अब्दुल्ला को एकदम पंजाब के स्कॉल्ड किया है कि हाँ तुम ज्यादा आप मस्ती कर रहे हो, कहाँ सुनील को हमको बोला है कि हम तुम लोग हल्ला ज्यादा कर रहे हो, अब ठीक करो, शांत करो धीरे धीरे। ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया था कि हाँ पॉइंट होता है। हाँ अब वो एक सर एक्चुअली पिलर थे लोग इस ग्रुप के। एंड प्रणव को कैसा थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा इजी थे, थोड़ा मतलब हंसी मजाक ज्यादा करते थे, तो ये लोग बीच बीच में ना क्रॉस चेक करती रहती थी, तो नेहा हो गई, ये लोग अर्चना बीच में बोल देती थी। मच नीडेड। प्रणव सर बहुत लाइट था, इसको कभी टेंशन नहीं होती थी, तो हमारे ग्रुप में था कि चिल जो रहता है ना, कि पढ़ता भी था और नॉर्मल था, तो हमें लगता था कि प्रणव जैसा ही करो, इतना टेंशन नहीं लो, हर चीज काम वे में करो, करते जाओ। तो ये था प्रणव का। तो लाइब्रेरी में भी प्रणव से बहुत ज्यादा देर बैठता नहीं था, ये लाइब्रेरी से रूम चला जाता था, तो नॉर्मल था, ऐसा लगता था कि इतना टेंशन भी नहीं लेना, इतना टफ भी नहीं है, नॉर्मल है, तो ऐसे वे में चला सर। और लास्ट 9 घंटे सोते थे सर ये लोग, प्रणव तो 8-9 घंटे सोता था, 11-12 बजे निकल जाता था लाइब्रेरी से, क्लास में तक सो जाता था सर सोने तो। सर प्रणव अपने को आ रहा टॉपिक तो सो जाता था सर। कोई चीज एक बार समझ लेता था, मतलब जैसे हम लोग थे याद करते थे, जैसे चीजें समझ में नहीं आ रही है तो याद कर लो, लेकिन प्रणव का था कि नहीं कॉन्सेप्ट बनाओ, पहले कॉन्सेप्ट अगर है तो तुम्हारा क्वेश्चन, जैसे मेरा था कि क्वेश्चन करो, लेकिन प्रणव का क्या था कि कॉन्सेप्ट अगर है तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करता था हमेशा, और वो थोड़ा ही पढ़ता था, उसका वो हमारे 4 घंटा था और उसका 2 घंटा वो बराबर होता था। नहीं सर ऐसा भी नहीं है, ये तो सर ऐसा नहीं है, मैंने तो बहुत सुना था, क्या देखा 4 का 2 में नहीं, बहुत मेहनत करता था, बट ये था कि चिल आउट करके मेहनत करते थे हम लोग, तो इतना दिखता नहीं था, वो अच्छी चीज रहती थी। ओवरऑल मोटिवेशन चल रहा था उसका, तो ये था कि अगर 9 बजे आ रही है, रात में 3 बजे भी हम लोग इसको कह के भगाते थे कि यार लेट नाइट हो गया, तेरे को थोड़ा दूर जाना है, 2 गली छोड़ के तू चली जा। 2-2 बजे लास्ट के 45 दिन में तो हमने 2-3 बजे तक इसको बोला कि यार चला जा, तब जाके जाती थी। तो सबका अलग अलग था, और सबका अलग अलग मतलब सबकी एक अलग अलग क्वालिटी कह सकते हैं सर, जिसके चक्कर में ये पूरा जो है एकदम सेल्फ सस्टेन हो गया ग्रुप अपने आप ही। यस सर एक चीज इसमें कहीं ये था सर कि ये मतलब सर ऐसा सब पढ़े हैं सर कि एक ही दूसरी बार नहीं होगा, इस हिसाब से तो तैयारी कर रहे हैं सब ये है कि सर ये दूसरी बार नहीं हो पाएगा। सर प्रिया सर बोले थे कि बेटा जो सिलेक्शन का जो भी परसेंटेज आता है वो फर्स्ट ईयर वाले लाते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले आते हैं वो उनका रेशियो ज्यादा रहता है। तो सर हम लोग उसी हिसाब से तैयारी किए थे कि सर ये दूसरी बार हम लोगों से नहीं हो पाएगा, ऐसे लगभग सब यही मोटिव कि अगर बाई चांस हम लोग वैसे बहुत मेहनत की थी, हम लोग आपस में बोलते भी थे, मैं सुनील प्रणव हम लोग बोलते थे अगर बाई चांस नहीं हुआ ना, तो जिस लेवल की मेहनत इस बार की है उस लेवल की मेहनत दूसरी बार हो नहीं पाएगी, जिस लेवल से हम लोग पढ़े हैं। और वही अच्छा रहा, मेरे को लगता है वही एक पॉजिटिव पॉइंट था कि हमने अपना बेस्ट दे दिया एक बार में, सब लोगों ने, सारों ने, हमारे ग्रुप ने, और वो हुआ, और इसीलिए सबका हुआ, सबने अपना अपना बेस्ट दिया। सबके साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जैसे कि मैं बताता हूँ, अर्चना की सर्जरी स्ट्रॉन्ग है, सुनील की एनाटॉमी स्ट्रॉन्ग थी, सुनेहा का तो फिर सब कुछ ही स्ट्रॉन्ग था, प्रणव कॉन्सेप्चुअली बड़ा साउंड था, तो इस चक्कर में हर आदमी की एक क्वालिटी थी, तो बढ़िया रहता था।
लेकिन जैसे जब परेशान हो जाते थे तो हम और अर्चना रूममेट थे, तो जब परेशान हो जाते थे तो हम लोग इतना कहते थे एक दूसरे से कि देखो, अगर अपनी किस्मत बहुत खराब हुई, अपन इतना मेहनत करने के बाद अगर अपनी किस्मत बहुत खराब हुई तो 180 आएगा, और बहुत अच्छी हुई तो 220 प्लस आएगा। इसी के बीच में रहेंगे और इधर अपन गिरेंगे फिर भी पास तो हो ही जाएंगे। ये था हम दोनों का रूम में, हमेशा यही हम दोनों कहते थे। नाइस नाइस। आफ्टर रिजल्ट तो मैं और सुनेहा का ये था, एग्जाम देने के बाद से हम दोनों का सेंटर मेरठ था। हम दोनों आकर, मैं इसको देख रही हूँ, ये मुझे बस मैंने पूछा तुम्हें क्या टफ लगा पेपर, तो इसने बोला नहीं नॉर्मल था। मैंने बोला कि यार मेरे को भी नॉर्मल लगा, बट पता नहीं कैसे ऐसे था, रूमर्स नहीं सही भी था कि पेपर। मैं सेशन के बाद भी बात कर रहा था, सब लोग मैसेज कर रहे कि नहीं टफ था सर, टफ था। मैं बोला नहीं, मुझे भी मॉडरेट ही लगा था, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, ऐसा तो जैसा नॉर्मल टेस्ट होना था। एंड आई थिंक सर एक बात का सर एराइज का टेस्ट होता था ना सर, उसी लेवल का ही क्वेश्चन आया था। ऐसा नहीं लगा सर एक बात कहना चाह रहा हूँ सर। मैं बता रहा हूँ सर, मैंने मतलब अदर प्लेटफॉर्म भी ले रखा था एक एमसीक्यू के लिए। तो मतलब मैंने जीटी देना स्टार्ट तब किया जब क्लासेस बंद हो गई अपनी, है ना। तो मुझे याद है कि अराइज का पहला जीटी हुआ था तो मुझे 142 मार्क्स आए थे। तो कोई मुझसे पूछ रहा है भाई कितने आए तेरे, तो मैं बता नहीं, मैंने किसी को बताया, मैं बस झूठ बोल दिया कि हाँ जस्ट पास निकला, बताने में बंद नहीं रहता सर। और मैंने जितनी जीटी दी है, 5 जीटी दी है मैंने, अराइज की दी है, अराइज के ऐप से दिया था। सब कहते थे कि अराइज की लेवल का ही क्वेश्चन आता, जो अराइज पे क्वेश्चन होता है ना उसी, और ये बात बिल्कुल सर सटीक बैठी कि उसी लेवल का ही क्वेश्चन आया था। और जितना मुझे मार्क्स मेरे अराइज के इसमें जीटी में आ रहे थे लगभग एवरेज, उतने ही मार्क्स मेरे मेन एग्जाम में है। मेरे एवरेज जो सेकंड जीटी हुआ था उसमें 195 मार्क्स आए थे, उसके बाद 183, किसी में 185, किसी में 175, ऐसे मार्क्स आते हैं एवरेज। सर मेरा एवरेज 183 मतलब जीटी के हिसाब से ही मतलब गया सर। नाइस नाइस नाइस। एक्चुअली सर जब मैं पहली बार आया था यहाँ दिल्ली में सर, तो मैं पहला जीटी दिया था कि क्लासेस जब स्टार्ट हुई थी तो उसके एक दिन पहले मैं जीटी दिया था कि देखते हैं अपन कहाँ पे हैं। तो सर मैं जब पहली बार दूसरे प्लेटफॉर्म पे जीटी दिया था सर, तो मेरा 126 आया था। तो मैं आपको बल्कि प्रणव को बताया था, दिखाया था स्कोर भी किया, 126 आया है। तो सर वहां से जर्नी स्टार्ट की सर। उसके बाद धीरे धीरे चलते गए सर, 140 आया, 148 आया। उसके बाद सर मैं सर एराइज का जीटी देता गया सर, मेरा सेकंड लास्ट जीटी 200 आया था। तो उसके बाद सर जो लास्ट वाली जीटी थी, नदीम सर बोले थे कि मैं बनाऊंगा ऑल इंडिया लेवल का, तो सर वो जीटी में दिया था। तो वो थोड़ी टफ भी थी सर, तो कॉन्सेप्चुअल था, तो वो उसमें सर मेरा 180 आया था। तो अपन ये सोचे थे कि सर इसी के बीच स्कोर आएगा। तो सर जब ये दिया सर, तो एक्चुअली सर मेरा पेपर भी, पहला पेपर मेरा थोड़ा गड़बड़ चला गया था। मैं सर फर्स्ट सेशन का सेकंड वाला पार्ट जो होता है सर, उसमें सर मुझे एंजाइटी होने लगी थी। एक्चुअली सर मेरा जो है टाइम थोड़ा कम पड़ गया था। मैं सर लास्ट के 3 मिनट में मैं सर 15 क्वेश्चन ऐसे मारा हूँ, मतलब कि बी सी ऐसे मारा हूँ सर। ये स्थिति थी सर। तो उसमें सर एंजाइटी हो गई थी सर, हाथ कांपने लगे थे मेरा। मुझे लगा था कि सर ऐसा हो सकता है कि मेरा ना हो पाए, ये स्थिति सर। तो सर लेकिन मैं सर लास्ट वाला जो था, थर्ड वाला पार्ट, तो सर वो थर्ड वाला मेरा गया, लेकिन अच्छा गया। तो उसके बाद मैं बाहर आया तो मेरा पूरा हाथ पैर कांप रहा था सर। उस समय किया मेरा पेपर गड़बड़ गया, मेरा पेपर गड़बड़। फिर आया सर बाहर, चाय पिया, तो माइंड को फ्रेश किया सर। मैं बोला सर अभी 150 है, अगर 150 में उसमें कुछ तो 50 क्वेश्चन तो सही होगा। ये स्थिति थी सर। तो अपन सेकंड में 100 ला सकते हैं। जब फर्स्ट तोड़ा था तो मुझे लगा सेकंड में ला सकते हैं। मैं सर सेकंड गया देने सर, आराम से एकदम काम माइंड में गया था सर। मैं दिया, मेरा सेकंड वाला पेपर अच्छा गया। तो कहीं न कहीं सर कॉन्फिडेंस आया कि हो सकता है। तो सर ऐसे सर, और मैं रिजल्ट तक सर मैं वो भी नहीं देखा था सर, रिकॉल वीडियो भी नहीं देखा था। इवन प्रणव देखा था सर, तुरंत देखा, मेरे को बोला था कि सर देख लो देख लो। एक्चुअली सर मेरा प्रणव का सेम सेंटर मिल गया था लखनऊ में। तो अपन सर 2 दिन पहले गए थे, ये सोच के कि 2 दिन पहले चलेंगे वहां पे, तो बहुत सारे सब्जेक्ट रिवीजन कर लेंगे साथ में बैठ के। तो सर वहां पे गए थे, अपन किए भी सर 2 दिन अपन सर 14 सब्जेक्ट लमसम कर दिए थे सर। एक साथ बैठ के 14 सब्जेक्ट कर लिए थे, और सर वहां काम भी आया सर। तो सर मैं रिकॉल नहीं देखा था सर, मुझे कहीं न कहीं डर था कि अगर मैं रिकॉल देखूंगा सर मेरा 150 नहीं आया तो सर एक अलग टेंशन बनी रहती है। सर मैं नहीं देखा। लास्ट दिन जब रिजल्ट आया था सर, मैं जब रिजल्ट आया था सर, वो पीडीएफ जब उसमें मैं अपना रोल नंबर डाल रहा था, तो सर मेरे हाथ कांप रहे थे।
तो सर जब मैं डाला तो सर जब 170 में देखा सर, पहले तो मैं पास देखा सर, उसमें स्कोर नहीं देखा, पहले मैं पास देखा। तो सर जो वो खुशी थी, मतलब कि सर इतना तेज से चिल्लाया कि मैंने पिताजी वगैरह थे सब, मतलब सोचने लगे क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, ऐसी थी सर। वो यही सब था सर। वो जो खुशी है ना, वो जो एक रिलीफ 120 के जर्नी से, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 165, ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर INI-SET। ये एक चीज था कि Yes, सारे sir. अच्छे बच्चों को बोलता हूँ कि Yes, all of sir. you should get up more than 165, and I'm really happy as a group all of you have been eligible to INI-SET, and that is a huge thing, and to carry along from such journey 120 से शुरू करके आज यहाँ पे। and Nitish के बारे में somebody can explain. I think Nitish also what kind of role Nitish had. अब्दुल्ला तो मजाक करेगा। ही बताओ मैम। हाँ सुनिया बताइए, सुनिया। सर बहुत ही नॉर्मल था ये पढ़ने में, एवरेज था। कॉलेज में भी ऐसे था और यहाँ पे भी ऐसे था। मार्क्स तो 180 अच्छे आए, मार्क्स तो ऐसा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा। वो पता नहीं क्या है, हमारे ग्रुप में जो था कोई भी ऐसा नहीं था। हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि अबव 200 भी जाना है, बट हाँ मेहनत, जो लास्ट में जो मेहनत थी ना हमारी, वो बहुत सही थी और टाइमिंग भी सही था, वो सारी चीजें थी, तो बेस्ट रिजल्ट हुआ। और इसका था कि ब्रेक टाइम में भी खाना के बाद से पढ़ना स्टार्ट कर देना, टाइम वेस्ट नहीं करता था। नॉर्मली जो उसका था अपना रूटीन, इवन ये तो हम लोग की तरह हॉस्टल्स में भी नहीं रहता था, रूम में भी नहीं, अपनी फैमिली के साथ रहना, तो इसके लिए बहुत था कि जर्नी इसकी तो डिफिकल्ट थी, क्योंकि घर पे रह के करना ये सारी चीजें, मेट्रो से आना, मेट्रो से जाना, तो बहुत डिफिकल्ट था। तो इसने बहुत मेहनत करा है सर। इसलिए सबके लिए खाना लाके रखता था, वो घर से आ रहा था ना, वो सबके लिए वो कुछ ना कुछ लाके देता था आप लोग को वहां पे। तो नाइस सर ये एवरेज था, बट ये परसिवरेंस रखा पूरे सेशन टाइम में ना, वो एक डिप्रेसिव माहौल नहीं लाने दिया अपने आप में भी कि हम एवरेज है तो हम कभी भी ये काम आ रहा है। बच्चे कनेक्ट नहीं होंगे 180 को, आप लोग एवरेज बोल रहे हो, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे जो सुनने वाले हैं ना। नहीं सर, यहाँ सब लोग एवरेज ही था सर एवरेज ही थे सर, कोई क्लास थे तो सब लोग एवरेज ही थे। हम लोग रिजल्ट का सोचे ही नहीं था, हम लोग एवरेज थे, बस कर रहे थे जैसे हो रहा था। सारी चीजें ये एराइज, आई मीन आजमी क्या था, आपने वहाँ पे अचीवर्स बैच जो लेकर गए ना वहाँ, वो बेस्ट था। सर वो बेनिफिट हुआ, हम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ सर। हम लोग सब अचीवर बैच में ज्वाइन थे, हम लोग सब सेम टीचर। जब यहाँ पे लास्ट में तो आपने एक बार लास्ट में शायद ENT या फिर किसी की क्लास थी, तो आपने कहा था ना कि अभी आप लोग इतना कैपेबल है कि 150 तो आपके आ जाएंगे। अब आप जब वहां जाइएगा तो 165 प्लस के लिए मेहनत कीजिएगा। तो इतना तो था कि एवरेज थे, लेकिन था कि चलो पास तो हो जाएंगे, यहाँ पे भी 10 सब्जेक्ट खत्म किए हैं तो वहां पे भी बाकी कर लेंगे। तो ये था, और फिर लगातार सब लोग लगे रहे, तो इस वजह से नंबर आए, बाकी सब एवरेज ही थे सर सब। कोई ब्रेक्स टाइप में आप लोग कहीं अदर देन जब एक क्लासेस के बीच में गैप होता था या फिर कोई गैप मिल जाता था, तो कोई ऐसा कोई चीज प्लान करे आप लोग, या फिर हाउ वुड यू टेक योर ब्रेक्स? कैसा सर हम लोग सर ब्रेक में सर मैं और अक्कू और प्रणव आकाश सर, हम लोग ब्रेक में कभी सर पढ़े ही नहीं। तो हम लोगों को सर ये था कि अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे सर, लेकिन रूम पे हम लोग जाते थे, लाइब्रेरी 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे, तो वो चीज हम लोग को कवर हो जाता था। आते थे हम लोग, जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया बस वही डिस्कस करते थे। ये लोग सर क्वेश्चन लगा देते थे, हम लोग जाते थे बाहर चाय नाश्ता करके आते थे सर, ये लोग लेकिन पढ़ते थे। मैं अक्कू प्रणव ये लोग, हम लोग सर प्लान बनाए 2-3 दिन की, सर चलेंगे और वहां पढ़ेंगे, ब्रेक में पढ़ेंगे, अच्छा समझ में आएगा। लेकिन सर वो सेचुरेट हो जाता था माइंड सर, 10-10 घंटे बैठ के सर हो नहीं पाता था हम लोगों से। बल्कि सर हम लोग आते थे रूम पे, हम लोग सर 2 घंटा एक्स्ट्रा सर दे देते थे कि वो चीज यहाँ कवर कर ले, ये चीज करते थे हम लोग सर। बाकी सर ये लोग तो वहां पे पढ़ते थे, अर्चना हो गई सर, सुनिया हो गई। बॉयज तो चले जाते थे चाय पीने, और हमारा कोई जाने का था नहीं, तो हम तीनों गर्ल्स का ये था कि जो पढ़ाया है फटाफट रिवीजन करते हैं, फिर थोड़ा बहुत बातें करेंगे, खाना वाना का ये रहता था सीन। बट ये था, और बॉयज तो अपना चाय पीने और ये सारी चीजें चलती थी, और हमारा बस ऐसे था। ब्रेक ऐसा था कि यूटिलाइज कर लो, ब्रेक 30 मिनट की हो रही है, 15 मिनट की हो रही है, तो आप 10 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट आप ऐसे रिलैक्स हो लो। तो ऐसा था हम तीनों का। मेरे को जो बेस्ट लगी थी, जिसके कारण हमारा रिजल्ट भी जो था मुझे लगता है इम्प्रूव हुआ, जब हमारा ये खत्म हो गया था, जो हमारे मतलब क्लासेस खत्म हो गई थी,
तो अरे जो फाइनल स्प्रिंट आपने जो ऐप पे आ गया था कि ये आपके सब्जेक्ट टेस्ट हैं, हम लोग एक बार जरूर करते थे इसमें से। नीतीश, क्योंकि उसने बताया कि बाहर रहता था, तो नीतीश तो नहीं होता था, अब्दुल्ला की लाइब्रेरी सेपरेट थी, बाकी हम लोग सारे एक ही लाइब्रेरी में थे, 2 लाइब्रेरी थी पर बिल्डिंग सेम थी। तो जैसे आज सब्जेक्ट टेस्ट हुआ, सपोज 50 नंबर का सब्जेक्ट टेस्ट हुआ और हम लोग सेम डे में दे देते थे उसको, ये भी था, लाइव में नहीं भी दे पाए तो उसी दिन दे देते थे। तो बस वो फिक्स रहता था कि शाम को जो है हम लोग इकट्ठे होंगे 4-5 बजे के समथिंग, 6 बजे के समथिंग, हमारी लाइब्रेरी के बाहर एक कॉरिडोर टाइप का बना हुआ था, तो हम 5 लोग उसमें बैठेंगे और सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम पूछेंगे कि यार एक यहाँ से कौन सा ये वाला किसका गलत हुआ है, अगर किसी का गलत नहीं हुआ तो हम लोग आगे बढ़ जाते थे, अदरवाइज उसको डिस्कस करते थे। हमने सब्जेक्ट टेस्ट के साथ भी किया और सारे तो नहीं पर 2 जीटीज के साथ भी हम लोगों ने ये चीज करी। जो सबको आ रहा है उसमें कोई इशू नहीं है, तो जो नहीं आ रहा तो फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, तो वो चीज हेल्प हुई सर ग्रुप में, और वो आखिरी तक चला। लास्ट सेकंड जीटी भी हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया था। और मुझे याद है अर्चना और जीनत भी थी, तो बोली थी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ क्वेश्चन उसको हमको आए भी नहीं थे समझ में, जैसे कुछ क्वेश्चन अगर सोल्यूशन देके नहीं समझ में आ गए तो हम लोग आपस में डिस्कस करते थे सर। और ये इसमें ब्रेक में भी चलता था, जो क्लास के ब्रेक जो होते थे छोटे छोटे, तो हमेशा तो हम लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन हम जैसे मान लीजिए खाना खा के जल्दी से कुछ चाय वाय पी के आए हैं, 10-5 मिनट बचा है, तो ये लोग ही बल्कि पूछते थे। हमको बेनिफिट इन्हीं लोगों से हुआ, इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, अब आपसे कोई न किसी ने पूछा तो अपन उसको पढ़ेंगे तो फिर उसको डिस्कशन भी करेंगे। टीएसएम की न्यूमेरिकल्स में हम लोग एक दिन तो हम लोग फंस गए थे, एक न्यूमेरिकल था 2x2 की टेबल नहीं बन रही थी हम लोगों से, उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो निकल के आ गया लास्ट में ना, उसमें आ गया था ना आंसर, शायद निकल के आया था ना आंसर। हाँ, तो ऐसे सब हम लोग आपस में करते थे। ऐसे लगा था 45 मिनट हमने क्लास का उसमें लगाया था, उस न्यूमेरिकल में किया था। और सर उससे एक क्वेश्चन भी आया, हाँ। वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आया, जो हम लोगों ने पढ़ा वो चीज आई, जहाँ हम फंसे थे वो चीजें आई। आई थिंक ये ग्रुप का एक इंपॉर्टेंस हो जाता है कि जहां जहां जीटी रिव्यू करने में मुश्किल होती है, मिस्टेक्स देखने में मुश्किल होती है, नो एक बैकअप मिल जाता है और एक वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन और सपोर्ट मिल जाता है। एंड अभी थोड़ा सा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर ग्रुप, लेट मी आस्क यू अबाउट अराइज एज सच, एज अ इंस्टीट्यूट, व्हेन यू केम देयर, कैसा था? कई सारे बच्चे आप लोग के मस्ट हैव लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग, जब अराइज आने से पहले भी आप लोग को लाइक लॉट ऑफ ऑप्शंस भी होते हैं, एंड बच्चे भी हम तो चाहते हैं कि भी बच्चे जुड़ के आए, भरोसा करके आए, बट इट्स स्टिल लॉट ऑफ कंफ्यूजन विज देयर। ऐसी क्या चीज थी कि आई थिंक आप मोस्ट ऑफ देम वर इन अचीवर्स बैच, एंड व्हेन यू केम बैक हियर आल्सो, what is the thing that has brought you to Arise? What was good about Arise compared to whatever you could have seen or experienced, and some really good memories that you have with Arise? I mean, faculties हो गए या फिर कोई ऐसी चीज है, तो I just want you to explain the decision of reaching Arise. I mean, जो Arise का जो मेन फैमिली में आना है, Arise फैमिली में आके उसमें इन्वॉल्व होना है और इस लेवल पे इन्वॉल्व होना है, what is something that drove you here? सर इसको हम थोड़े मतलब पार्ट में बांट देते हैं। मैं बता देता हूँ कि कैसे हम स्टार्ट हुए आना, कैसे हमने प्लान बनाया, बाकी फिर अपना सबने उसमें दे देंगे। मैं बता देता हूँ सर कि हम लोगों ने ज्वाइन कैसे किया सबने, और मैं वो सबके तरफ से बोल सकता हूँ बिकॉज आई नो ऑल ऑफ देम अच्छे से। सर अच्छी चीज हमको ये लगी थी कि ऑलरेडी हमारा ट्रस्ट बिल्ड था, हमको आने के लिए उस डिसीजन को हमको किसी ने फोर्स किया था और ना हमको किसी ने कहना भी पड़ा था, एक दूसरे से भी। इवन हम लोग जो अचीवर्स बैच में 6 जितने भी लोग थे, हमारा बस इतना था कि दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, उसमें थोड़ा सा वो रहता था। बट जैसे हमने डिसाइड किया कि हमको जाना है तो वो फिक्स था, क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड था। आप शुरू से ही कहते थे ट्रस्ट द प्रोसेस, और वो शुरू में 1 आध साल लगता था, बट जब हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू क्लासेस हो रही हैं तो उसके बाद फिर वो एक ट्रस्ट आ जाता है। तो वो चीज हो गई थी कि अपने को ज्वाइन तो अराइज ही करनी है और ऑफलाइन बैच ही करना है, हमारे पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन था। सर एक्चुअली क्या है ना कि सबका तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये है कि सर मतलब ऑनलाइन उतना जमता नहीं मुझे सर। पढ़ भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, क्वेश्चन में लगा लेता हूँ, लेकिन मतलब फील ही नहीं आता सर, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो मैं हमेशा से मतलब ऑफलाइन के फेवर में रहा हूँ। तो वहां भी जब क्लासेस चलती थी, मतलब बात हुई कि हाँ अगले साल वेकेशन के बाद टीचर्स आएंगे अराइज से, खली सर बोले हैं ऐसा वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, मतलब सब इकट्ठे हो गए थे। फिर बाद में कुछ मतलब हुआ था ऐसा कि नहीं होगा वैसा वैसा, तो फिर मतलब हम लोग आए वहां पे, तो फिर मतलब ये था कि सर करना ही है, मतलब कि सब बेनिफिट होता है सर। ऑफलाइन कोचिंग जो होता है ना सर, बहुत बेनिफिशियल होता है। अब फिर वहां पे है कि मैंने प्रियांजन सर गए मेडिसिन के लिए, प्रसन्नवीर सर गए, ये सब पीएसएम वाले सर गए, तो ये सब मेजर सब्जेक्ट है सर। तो ये मेजर सब्जेक्ट ही सर बहुत मैंने अच्छे से पढ़ा था वहाँ। बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे वहां से, ये मैं कह सकता हूँ सर। फिर जब यहाँ आया तो आज़मी में काफी अच्छे रिजल्ट्स लाके जी सर। I mean, I think वो अचीविंग बैच का जी, आज़मी से बहुत अच्छा रिजल्ट आया
प्रियांश सर ऐसे मोटिवेट कर रहे थे ना हम लोग का, मतलब कि ऐसा था कि हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। मतलब वो वहाँ पे मेडिसिन का कंसेप्ट उनसे ही सर हम लोग को समझ में आया। मतलब इससे पहले मुझे समझ में नहीं आता था, इधर उधर बहुत करा लेकिन समझ में नहीं आया। जब तक बैच में उन्होंने पढ़ाया ना मेडिसिन, उसका मेडिसिन के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, मतलब कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया था। तो फिर उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द प्रोसेस, आप किसी फैकल्टी किसी चीज में लग जाओ एक प्रोसेस में और ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। तो उसी से बस हम लोगों ने, मैंने ठान लिया था कि मैं इन्हीं में रहना है और इसी चीज को फॉलो करना है। तो सर ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ सर ये राइट के थ्रू। और प्रियांश सर कहते भी थे सर, वो लोग हमें हमारी तारीफ प्रियांश सर ने भी बहुत की है। वो इवन ये तक कहते थे, आप भी जब आए थे तो उन्होंने आपसे भी कहा था, इफ यू रिमेम्बर, उन्होंने कहा था कि इतना सीरियस बैच है ना ये, कि अगर मैं अपने आईपैड पे लिखता भी हूँ ना तो पेंसिल जो आवाज करती है वो तक मुझे सुनाई आती है। तो वो लेवल ऑफ सीरियसनेस वहाँ बहुत अच्छी थी। बट सर मैं बता रहा हूँ, वहाँ हम बहुत अच्छे से पढ़े, मजा आया। बट ये जो दिल्ली के 6 महीने थे ना, प्रणव से स्टार्ट करते हैं सर। ये दिल्ली के 6 महीने हम लोगों ने जो गुजारे हैं, आई थिंक दीज आर द बेस्ट। और यही था हमारा जो प्राइम था, मतलब प्रिपरेशन का भी। सर हम जो वहां पे कर रहे हैं सर, बाय द प्रोसेस हम लोग चल रहे थे, धीरे धीरे हमारा एक ही गोल था, स्टेप बाय स्टेप लेना है। एक बहुत बड़ा गोल हम कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि 6 मंथ तो है हमारे पास में, ये है हमारे पास में, अभी फर्दर एग्जाम नहीं है। हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, ये कंसेप्ट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवर किया और चीजें होती गई। तो ये जैसे आकाश बताया था, ट्रस्ट वहां से था, ट्रस्ट था तो हम लोग ज्वाइन कर लिए। और ज्वाइन किए तो फायदा इस तरह हुआ कि हम लोग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को जो हम अगर पर्सनली बैठते हैं, हम एक मैं हुआ, आकाश हुआ और सुनेहा हुई, अगर हम ठीक ठाक स्टूडेंट बोल सकते हैं अपने आप को, मैं बता सकता हूँ कि अगर हम लाइब्रेरी में बैठते हैं और ब्लाइंडली पढ़ रहे हैं किसी ऐप के थ्रू, किसी ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू, तो वो उतना मतलब अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है कि हाँ ये सब्जेक्ट खत्म हुआ, उसका टेस्ट कंप्लीट करो, फिर उस सब्जेक्ट कंप्लीट करो, दूसरा सब्जेक्ट उसके बाद टेस्ट कंप्लीट करो, ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है। बट इसके थ्रू हुआ क्या कि हम लोग धीरे धीरे पता ही नहीं चला और हमने पूरे सब्जेक्ट खत्म कर लिए। सब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन के साथ में मस्ती कर लिए, मस्ती के साथ में एकदम से वो चिल आउट है, और हमको पता नहीं है कि हमारा कब का पूरा कंसेप्ट और चीजें कंप्लीट है हमारा। ये चीजें राइज के थ्रू मिली हम लोग को, ये बेनिफिट थी हमारे से। आई थिंक वो ट्रांजिशन आप लोग देखे पूरा, राइट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सो लॉट ऑफ डाउट भी होगा सर, लेकिन जो प्राइम में आप जब आ जाते हैं, एक बार सारे सब्जेक्ट्स हो गए और टेस्ट एंड डिस्कशन मोड में आ गए। अब्दुल्ला भी बता रहे थे कि स्टार्टिंग 146 142 में आए और एवरीबडी इज नाउ एलिजिबल, मोर देन everybody got very good scores, 180 पे इन्होंने आए, it's nice, and 126 पे डॉक्टर सुनील आए। तो I think that journey, that intensity that you maintain, और एज अ ग्रुप है और एक वेरिड पर्सनालिटीज है, कई सारे बच्चे कुछ सब्जेक्ट सेलेक्टिवली करते हैं। आप लोग ऐसे कोई भी मिस्टेक्स आप जो अपने जूनियर्स के लिए, जो एफएमजी एस्पिरेंट्स के लिए, ओवरऑल एज एफएमजी जर्नी कितना क्रूशियल एग्जाम है बच्चों के लिए, आप लोग अपनी तरफ से और अपनी लर्निंग से कोई भी ऐसी चीज बोल सकते हैं जो जूनियर्स को गाइड करे कि भाई कि ये चीज मत करो या ये चीज करो during this preparation process, one by one anybody can have any suggestions? Yes सर, पहले तो मेरी जर्नी जो अराइज के साथ है, ये अचीवर्स बैच से नहीं है। ये फर्स्ट टाइम जब अराइज आया था एशियन में, सेकंड ईयर से सर, मेरे को याद है फर्स्ट इंजेक्शन देना आपने सिखाया था, मैं अपने रूममेट को दी थी, तब से शुरू है, लाइक सेकंड ईयर से डिग्री तक, और यहाँ एफएमजी तक का है। और जूनियर्स के लिए मेरा सजेशन है कि कभी किसी को कॉपी मत करो, लाइक कुछ भी जो बोल रहे हैं ठीक है सुन लिया, बट खुद को जो सूट कर रहा है वही करना है। जो एक लाइब्रेरी का मिथ रहता है, वो अर्चना और हम लोग मिलके वो तोड़ चुके हैं। लाइक लास्ट 10 days हम लोग लाइब्रेरी का शक्ल ही नहीं देखे हैं। तो एक जो मिथ है कि भाई ऐसे पढ़ोगे तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें जो सूट कर रहा है, तुम्हें जैसा लग रहा है वो करो। सजेशन लेना है सबसे, बट खुद पे जो सही हो, सबका सुनो बट खुद पे जो है। और इम्प्रूवमेंट अगर नहीं हो रही है तो टीचर से पूछना, फ्रेंड से पूछना, अकेले बैठ के नहीं होगा। हम लोग तो सारे टीचर्स के पास जाते थे, अराइज में, वहां भी यहाँ भी। तो ये चीज है सर जूनियर्स का, कि कॉपी नहीं करना है सर, बस। नाइस। अब एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट स्टोरी, अपनी स्टोरी खुद लिखना है। मैं अगर बोल सकता हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि सर जंबल मत करो, सोर्स चेंज मत करो, एक सोर्स पे स्टक करो। और लास्ट मंथ होता है उसमें अगर रिसोर्सेस बहुत ज्यादा आपके पास हैं, बहुत सारे लोग 3 घंटे 4 घंटे में ला रहे हैं, उस पे मत जाओ और तुम्हारे अपने मेन नोट्स पे रहो। मेन नोट्स को कंप्लीट करो, तुम्हारा रिजल्ट रखा हुआ है, बस वो
कहीं से सोर्स मत चेंज करो, बस लास्ट तक यही मेरा सोर्स चेंज नहीं करना सर है। सारे सब्जेक्ट करने हैं सर, स्मॉल सब्जेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है सर। स्मॉल सब्जेक्ट सर बहुत हेल्प कर रहा है सर। हार्ड सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट तो थोड़ा सा होता है सर, बट मेन जो इजी सब्जेक्ट है वो काफी सर नंबर देते हैं, और सारे सब्जेक्ट करने हैं, और सर जीटी देने ही देने हैं सर। जीटी से ही सर उठ के क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, मतलब जो हम लोग ने कर रखा था ना वही सीधे सीधे आ रहे थे सर। मतलब जीटी ने बहुत हेल्प करा सर, बहुत ज्यादा जीटी ने हेल्प करा सर। पेपर देते टाइम तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ऐसा लिंक है क्या। लिटरली मेरे को ऐसा था कि फर्स्ट पेपर देने के बाद बहुत अच्छा गया था पेपर, बट हम लोग आपस में नहीं बोल रहे थे कि पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, हो जाएगा तब बोलेंगे कि अच्छा था फर्स्ट पेपर। तो सर एक्चुअली एराइज जो था सर साकेत में, वो सर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट था। ऐसा था कि सर वहाँ पे कोई निगेटिविटी नहीं थी। जितने सारे थे साकेत में सब एराइज के ही थे, और सर लगभग सर सब फ्रेशर थे, सब वही फर्स्ट ईयर, सबका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो सर एक अलग ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट था, अलग ही पॉजिटिविटी मिलती थी वहाँ पे। तो सर ये चीज सर बहुत मतलब हेल्प हुआ हम लोगों में, यार अपन सब तो फर्स्ट ये है, अपन सब कर सकते हैं। कोई ऐसा निगेटिविटी नहीं थी कि सर कोई है 5-6 अटेम्प्ट का है, सर बता रहा है कि नहीं होगा, ऐसे होगा, वो ये करो वो करो, सर वो चीज नहीं था। तो सर जो भी डिसीजन लेना था सर हम ही लोग को लेना था, हम ही लोग को फॉलो करना था, किसी को सुनना नहीं था, ये चीज था सर। और सर जूनियरों के लिए सर सबसे चीज अच्छी है कि सर रिवीजन बहुत जरूरी है सर। अगर सोर्स नहीं चेंज करना, रिवीजन करना। और सर लास्ट के 15 दिन अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देख रहा है तो सर वो मतलब कि स्कोर अपना डाउन कर रहा है सर। कोई अलग सोर्स से या कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा है सर, वो चीज सर फिर गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप सर जूनियरों के लिए है सर कि सिर्फ नोट्स को रिवीजन करो, 4 से 5 बार रिवीजन आराम से हो जाता है सर। लास्ट के 2 मंथ में 4 से 5 बार आप कर सकता है तो सर ये चीज रिवीजन मस्ट है सर। स्टिक टू मेन नोट्स रिवीजन करो, ये बता रहे हैं आप लोग उसमें। यस सर। डॉक्टर अब्दुल्ला, आपका पर्सपेक्टिव? जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है सर, कि आसपास में लोग रहते हैं जो ये कहते हैं कि ये फलाना टीचर है, इनका क्वेश्चन 50% क्वेश्चन इनके नोट से नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मुझे याद है मतलब कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले मुझे किसी ने कहा था, किसी टीचर के बारे में नाम नहीं लूंगा, कि उनके वो क्या बोलते हैं क्वेश्चंस नहीं आते हैं, से तुम पढ़े हो, इससे मैंने इस टीचर से पढ़ा है। जब मैं एग्जाम दिया, फिर मैं एग्जाम दे के मैं उससे बात किया, हालांकि उसका भी एग्जाम क्लियर हो गया, तो मैंने उससे बात किया, मैंने बताया कि भाई मतलब उनके नोट्स के अलावा डिट्टो एक क्वेश्चन तो ऐसा था सर, उन्होंने ऊपर में लिखवा रखा था सर ने, वही क्वेश्चन था, मैं नाम नहीं लूंगा सर का, तो सेम क्वेश्चन था सर। तो मैं बोला उसको, तो इसलिए कभी किसी के बात पर नहीं रहना। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे, या दूसरा आपके लिए नहीं कर रहा है, तो जहां से आप कर रहे हो उसी वहीं से करते रहो। और सोर्स हो तो चेंज करना ही नहीं है, भले समझ में ना आए, भले उसको कहीं से समझ लो, टीचर से डाउट क्लियर कर लो, दोस्त से पूछ लो, ये कर लो वो कर लो। तो मैंने अपने दोस्तों से समझा, और मैंने बार बार रिवीजन किया सर। रिवीजन सर बहुत रिवीजन फैक्टर सर बहुत मैटर करता है सर, रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है सर। अगर इतना किया कि सर मतलब क्वेश्चन करने लायक हो गए, अच्छे खासे क्वेश्चन करने लायक हो गए। यही करना है कि बार बार रिवीजन करना है, किसी की बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, टीचर तो कतई चेंज नहीं करना है, एक पे चिपक गए तो चिपके ही रहना उन पे जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए आपका, और पहली बार नहीं होगा। नाइस। एंड डॉक्टर नीतीश, समथिंग फ्रॉम योर साइड? सर लोग जो बोलते हैं उनको सिर्फ सुनना है और उनको ही बस फॉलो करना है, और इधर उधर कोई ध्यान नहीं देना। मैं सर का ही फॉलो कर रहा हूँ, जो सर बोलते थे, जो सर ने रूटीन हम लोग को बनाया, जो सर ने बोला कि ऐसे से करना है, इतने रिवीजन करने हैं, ऐसे डेली क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ऐसे जीटी से डरना नहीं है, जीटी देते रहना है, बस उसी चीज को फॉलो करा है सर, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा है अपने साइड से। सर ने बोला वो फॉलो किया और पहला अटेंडेंस सर हो गया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। Nice. And trust your teachers, trust your process. That is what. Dr. Archana, from any perspective, right? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप एराइज में आ रहे हो तो सब चीज भूल जाओ, आप एराइज में जो बोला जा रहा है वो करो। मैंने तो, और मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ कि आप फर्स्ट डे से लगो, ऐसा नहीं कि 2 महीने हो गए फिर स्टार्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें याद है कि हमारी 10 जुलाई से क्लास स्टार्ट हुई थी फिजियो, उस दिन से हम लोग इवन सिंगल डे, सिंगल आवर्स हमने वेस्ट नहीं करा है, ठीक है। बस ऐसा था कि
कर लिया, ठीक है, अभी जितना पढ़ाया हमने वो कंप्लीट करो, फिर आपका टाइम बच रहा है तो क्वेश्चन लगाओ, और सब्जेक्ट कंप्लीट हो जा रहे हैं तो फिर आप उस सब्जेक्ट को रिवीजन करते रहो, 2-3 घंटा देते रहो। 2-3 घंटा नहीं, स्टार्टिंग में मिलेगा, लास्ट में कम होते जाएंगे, तो आप सब्जेक्ट को टच में रखो। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो लास्ट में जाके भूल जाता है, तो आप उसको लेके चलो साथ में। तो मैं जूनियरों को यही बोलूंगी कि फर्स्ट डे से बस सोचो कि बस एक ही है कि मेरे को एफएमजी निकालना है और वही मेरा गोल है, बस ये है, तो वो हो जाएगा। मेरा तो बस ये था कि मेरे को बस दिखता ही था एफएमजी की, हाँ एक ही एग्जाम है, उसको क्लियर करना है और फर्स्ट डे से लगे रहो, ये था। तो आप जूनियर भी करेंगे तो हो जाएगा, बहुत मुश्किल भी नहीं है, इजी है, निकल जाएगा सर। Dr. Deen, you must have observed a lot of things that are happening, right? बच्चों के बीच में and all. What are your suggestions? जो चीजें अवॉइड करनी चाहिए और जो चीजें करनी चाहिए? सर सेम मेरे साइड से भी वही है कि नोट्स चेंज नहीं करना है और बस कंसिस्टेंसी, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, हर दिन सेम नहीं होता है, कई बार तबीयत भी खराब होगी, मतलब काफी इश्यूज आएंगे, इमोशनली भी, कभी डर भी लगेगा। तो सेम डे को कंपेयर नहीं करना कि आज नहीं पढ़ा तो उस दिन को लेके 2 दिन और नहीं पढ़ा, तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट उसको फ्लो में रखना है, बात करते रहनी है, ग्रुप बनाओ, जैसे हमारा ग्रुप था, बहुत सारे मोटिवेट होंगे इससे कि हाँ 2-4 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं साथ में, तो हो जाएगा। और टीचर से टच रहो। और अराइज टीम का तो सर बहुत ज्यादा थैंक्स है, लाइक फर्स्ट डे से लेके पेपर दिलाने तक बसेस अरेंज करना। मेरे पापा तो ऐसे चिल थे, कोई ना पेपर दिलाएंगे ना, वो उनकी जिम्मेदारी है, इतना था कि वो ले जाएंगे। तो पेपर दिलाने से लेके हर चीज में अराइज का तो बहुत ज्यादा, मतलब थैंक्स टू अराइज। We are very happy and we remember your journeys, your efforts in those classrooms. जो आप लोग की जो मेहनत थी, okay, वो पूरा it's a memory that you all leave back and you all will be cherished and your success will be cherished and all these efforts that you have done together, right, will all be cherished. And Dr. Suneha, आपकी तरफ से कोई suggestions? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे सबने कहा कि हाँ नोट्स मेंटेन रखना है, और जैसे हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट पुराने जो सब्जेक्ट पहले हो चुके हैं उनको 1 महीने में एक बार तो रिवाइज, जैसे 5-6 महीने का ही समय है, तो ये नहीं है कि पहले जो सब्जेक्ट हो चुका है उसको भूल जाओ। और लास्ट में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट चलता रहता है उसको बस पढ़ते, पीछे वाला हम भूल जाते हैं। तो मैं ऐसा करती थी, जैसे पहले का जो टेस्ट हो चुका है, जैसे रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो जो पहले का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुआ है राइज में, तो ऐसा है कि उसको आप फिर से कर सकते हो, उसको फिर से। मैं तो टेस्ट वाला ही कर लेती थी, तो टेस्ट को पूरा 50 क्वेश्चन करके फिर वो रिवाइज हो जाता था। उसके बाद बहुत ऐसा शेड्यूल नहीं बनाना है कि 1 महीने का शेड्यूल बना लिए फिर वो फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो मिनिमम अगर जो भी जैसे एक सब्जेक्ट चल रहा है जो क्लास में चल रहा है, तो अदर देन बैकअप में ये रखना चाहिए कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो पीछे वाला रिवाइज करते ही चलो, जो समय अगर उसमें बच रहा है। तो 2-3 दिन का या 1 वीक का शेड्यूल ऐसा बनाओ कि जिसमें पुराना सब्जेक्ट भी हमको देख लेना है जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके हिसाब से। जी। एंड डॉक्टर प्रणव सर मेरा एक सजेशन है लोगों के लिए, क्योंकि इस एग्जाम को सब लोग ने बहुत हैक्टिक बना के रखा हुआ है कि हाँ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मैं हमेशा अपने ग्रुप में भी बोलता था चिल रहो, थोड़ा काम रहोगे तो चीजें आसान होंगी। हम अपनी चीजों को खुद पूरे मुश्किल ना रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपनी चीजों को खुद आसान बनाओ। तुम समझोगे पहले कि अगर ये एग्जाम आसान है, तुम कर सकते हो, देन तुमको एबिलिटी भी आएगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगी कि ये कर सकते हो तुम। अगर तुम आगे से वो कॉन्फिडेंस लाओगे कि ये नहीं हो सकता है, देन वो गलत हो जाएगा फिर तुम्हारे साथ में। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा कामली होके चलो, सब हो जाएगा बस। एंड डॉक्टर आकाश? यस सर, मेरे तरफ से सर बाकी सब चीजें तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, सोर्स चेंज एंड एवरीथिंग। मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर ये वक्त के साथ आती है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। मैं इस सोच में था कि सपोज अगर मैं वहां से 13 सब्जेक्ट्स करके आया हूँ, तो मेरे जो बाकी बचे 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनका मैं क्या करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, वो रहता है। तो मेरा ये मानना, और ये मैं अराइज के बाद ही सीखा हूँ इस ऑफलाइन बैच के बाद, कि कोई फेस वैल्यू पे नहीं जाना और दूसरों के सजेशंस पे नहीं जाना। जैसे अगर आपने कोई एक सोर्स चुन लिया, जैसे हमने चुन लिया, तो उसके 2 सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो फर्स्टली हो गया पीजीओ, हमने कभी नहीं पढ़ी थी, और वो सर पहली बार आए थे, सर जो आए थे हमारे श्री तेजा सर, वो पहली बार आए थे। हाँ, और वो हम लोगों को एक्चुअली रिपीट वाले उसमें आए थे, हम लोग बाद में लेट ज्वाइन किए थे। तो हम लोग आगे बैठ के अच्छे से उनका पढ़े, एंड टचवुड सर उनके क्वेश्चंस एग्जैक्ट टाइप कॉपीज, उनके नोट्स बहुत शानदार है। 1 सेकेंडली सर डरमा मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, और 3rd मैंने रेडियो कभी नहीं पढ़ी थी। ये 3 सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़े थे। तो रेडियो आपसे पढ़ी,
आपसे तो सर पता ही था कि चलो रेडियो शॉर्ट है अपनी, वो ठीक है अगर आपको पता है तो। डरमा हमने सर से पढ़ा, उनके नोट्स काफी बड़े थे, हमने मुझे याद है फर्स्ट डे हमने देखे वो नोट्स, बट जब वो पढ़ा के गए ना सर, तो मैं और प्रणव हम लोग हमेशा कभी भी बैठते भी थे, सुनील वगैरह, तो वो डरमा की जो बुकलेट है ना उसको 1.5-2 घंटे में पूरा पढ़ लेते थे। एक चीज मैं ये, दूसरा मैं चाहूंगा कि हर बंदा हर सब्जेक्ट एक बार डिटेल पढ़े और उसके बाद फिर कोई एक ऐसा कंसाइज स्लॉट बनाए। जैसे मैंने अगर सर से, संदीप सर से एक बार अच्छे से पीडीएफ पढ़ ली है, तो मेरा ये एम होना चाहिए कि एग्जाम तक, भले ही उसमें 6 महीना है 4 महीना है, नो मैटर, आपको उसको, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसको हर रिवीजन में शॉर्ट आउट करके चलना है। क्योंकि हम लोग लास्ट तक लगभग सारे सब्जेक्ट 8-9 सब्जेक्ट ऐसे थे कि हम 2-2.5 घंटे वाले सब्जेक्ट तो उनपे आ गए थे। और तीसरा पॉइंट सर, ये मैं अपनी तरफ से पर्सनली कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि सर निमोनिक्स बहुत हेल्प करते हैं इस एग्जाम में। ऑफकोर्स करते हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास है, ऑफकोर्स वो काम आएगा, बट मैं पर्सनली बहुत फैन भी हूँ निमोनिक्स का, और मैंने सर बहुत सारे बनाए भी। तो आप वो बना सकते हैं जो अपनी मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई चीज अगर आपको हार्ड लग रही है तो आप कर सकते हैं वो, तो वो एक चीज हेल्पफुल होती है। और छोटा, जितना छोटा कंटेंट रहेगा और जितनी ज्यादा बार पढ़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने माइक्रो के कंटेंट में, मेरी माइक्रो के पूरे नोट्स मिला के 25 पेज के भी नोट्स नहीं होंगे, मुश्किल से 25-30 पेज के नोट्स थे, बट वो 25-30 पेज नोट्स के नोट्स ऐसे थे कि मैं पेपर के ऊपर हाथ रख के भी उसको पढ़ सकता था, इतनी बार मैंने पढ़ रखा था। तो वो ये चीजें सर मेरी तरफ से हैं। और लास्ट के 3 जो रिवीजन है वो बेस्ट हैं। आप मेरे हिसाब से, हम लोगों ने जो किया था, हम लोग सेम ही टाइम टेबल फॉलो करते थे 5-6 लोग लाइब्रेरी वाले, तो आप एक रिवीजन बनाइए थोड़ा लंबा, उसको आप चिल आउट करके कीजिए। हमने 20-25 दिन का बनाया था, 20 के बाद फिर हमने नेक्स्ट बनाया था 12 दिन का, उसका नेक्स्ट बनाया था 10 दिन का। तो अगर ऐसे करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे, और वो होगा। अभी सुनने में लगता है कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट कैसे होंगे, बट होते हैं। और हम लोग तो इस चीज के प्रूफ है, हमने एक दिन में 5-5 भी किए हैं इवन लास्ट में जब अच्छे से पढ़ चुके हैं। यस सर, यही इनपुट रहेगा और यही सजेशन मेरे तरफ से। डॉक्टर सुनील, I'll just go on. आप लोग के जो फेवरेट फैकल्टीज, और कोई भी ऐसे कोई फेवरेट फैकल्टीज का मेंशन, सारे फैकल्टीज भी विल बी लिसनिंग एंड they'll be happy also. तो सबके अपने अपने फेवरेट्स जो भी होंगे, ओके, फॉर डिफरेंट रीजंस यू विल बी हैविंग योर फेवरेट्स, राइट? एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम एवरीबॉडी. डॉक्टर सुनील, आप बताइए, हु आर योर फेवरेट्स? सर एक्चुअली सर फैकल्टी सर सबसे सर मतलब मजेदार टीचर थे सर, नदीम सर। तो सर उनकी सर जो पढ़ाने की तरीका था सर, वो एक्टिंग करके पढ़ाते थे। मतलब पूरा सर ऐसा लगता था कि पूरा सर आगे पूरा छपा हुआ है सर, आप एग्जाम में बैठते हैं सर वो भी पूरा दिखता है। और सर आप तो रेडियो सर जो पढ़ाए हैं हम लोग पहली बार रेडियो पढ़े थे, ये लगा था कि सर हम लोगों से रेडियो नहीं हो पाएगा। तो सर वो चीज है सर, आपसे पढ़े उसके बाद रिवीजन भी किए, तो सर हम लोगों का ऐसा हो गया था कि 70-80% कहीं से भी क्वेश्चन होता था तो हम लोग सॉल्व कर लेते थे। 80% तक हम लोग सॉल्व कर लेते थे, INCT वगैरह जिसका भी पेपर होता था, PYQ। तो ऐसा हो गया था रेडियो। और सर मेडिसिन से सर मतलब बेस्ट टीचर सर प्रियांश सर से मतलब कि कोई है ही नहीं ऐसा लगता था, क्योंकि मेडिसिन इतना इजी वे में पढ़ा। हम लोग मेडिसिन किसी दूसरे फैकल्टी से पढ़े भी थे, मैं भी आकाश दोनों साथ में पढ़ते थे, एक फैकल्टी थे तो उनसे पढ़े, लेकिन हम लोगों को उतना समझ में नहीं आया मेडिसिन। लेकिन सर प्रियांश सर ने पढ़ाया जो मेडिसिन, तो सर उसे क्वेश्चन भी हो रहे थे और छोटे नोट्स थे, मतलब इजी नोट्स थे, ऐसा लग रहा था सब कहानी चल रही है कोई। नाइस। और सर उनका सर बायोकेमिस्ट्री सर बहुत तगड़ा था। और सर ENT के फैकल्टी सर राजू धवन सर, वो सर बेस्ट थे। और उसके बाद सर सुधा मैम हम लोगों को ऑप्शो पढ़ाई थी मैम, एक बार वहां भी पढ़ाई थी, एराइज में भी, और यहाँ भी आके पढ़ाई थी। मतलब सर ऐसा था टीचर लगभग सब बेस्ट थे सर। और सर मतलब सर ब्लाइंडली ट्रस्ट होना चाहिए टीचर पे सर। अगर टीचर बोल रहा है वो आम है, भले इमली हो, लेकिन आम ही पढ़ना है, ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए सर। ट्रू। तो सर ऐसा डॉक्टर आकाश बताए कि डोंट गो फॉर डोंट गो ऑन लॉट ऑफ unnecessary face values and this and that. Trust the process, trust your teachers, and it is our responsibility also कि हम जब बच्चों को इतनी responsibility से बुला रहे हैं and when we are providing them content, more pressure is on us that they get our best, and we also have that thing कि हमारे बच्चों को सबसे बेस्ट मिलना होता है। And डॉक्टर अब्दुल्ला, आपके कोई favorites that you would like to mention? सर फेवरेट और अच्छे तो सब टीचर थे, लेकिन मतलब मुझे जिनसे ज्यादा लगाव था वो प्रियांश जैन सर थे और प्रसन्नवीर सर थे। नाइस। और प्रसन्नवीर सर इसलिए कि सर मैं जब स्टार्टिंग करी अपनी पढ़ाई की तो गायनी के ऑफ ही करी, तो एक प्लेटफॉर्म पे थे वो, अभी भी हैं वहीं, तो वहीं से पढ़ा स्टार्टिंग में। तो सर उनके पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में आया
उनसे अच्छा मुझे कोई समझा नहीं पाया ऑब्स का। मैंने ट्राई किया तो टीचर से पढ़ने का, लेकिन उनसे अच्छा मुझे कोई समझा नहीं पाया, इसलिए मुझे बेस्ट लगते हैं। और वो प्रैक्टिकल करके समझाते हैं, लाइक पूरी असली डिलीवरी का तो करवाते प्रैक्टिकल हैं, नहीं कर पूरी पाएंगे, डिलीवरी लेकिन करवाते हैं सर। हाँ पूरी डिलीवरी खुद से करके ये वो तो वो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। और हाई एनर्जी, मैं आई आज रियली भी उनका लॉट ऑफ शुक्रिया अदा रिस्पेक्ट। करता हूँ, अगर देख रहे होंगे तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन बने उनके नोट से, तो सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उनका व्यवहार मतलब एक क्लास में अलग ही मतलब रहता है उनका एनवायरनमेंट। और दूसरे प्रियांश जैन सर तो मतलब मेडिसिन, मतलब अगर एक कोई नॉन मेडिको है उनको ही पढ़ा देंगे तो उनको ही मेडिसिन आ जाएगा, ऐसा मतलब पढ़ाते हैं वो। ये तारीफ उनकी जितनी करी जाए कम है। और उनकी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने फॉलो की और मुझे फायदा हुआ रियली में। और मैं दूसरों को भी समझाता हूँ, सर ने ऐसा कहा है तो ऐसा करो। बाकी सब टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो अच्छे नहीं, मेरे लिए सब अच्छे टीचर जो भी जिनसे मैं पढ़ा हुआ इसमें सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं सब। मतलब मैंने सबका जो भी जिन्होंने पढ़ाया सबका अच्छा नॉलेज एक्वायर किया मैंने, और मुझे फायदा हुआ। नाइस नाइस। डॉक्टर नितेश, कोई पर्सनल फेवरेट्स आपके? सर सलमान सर मेरे बहुत फेवरेट रहे। उन्होंने जो माइक्रो में जैसे पढ़ाया, जितने लाइन वो लिखवाया, जितने वो टिक करवाया ना कि बस इतना ही करना है, बस वही क्वेश्चन है सर, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। माइक्रो फार्मा इतना इजी करा दिया ना हम लोग को, मतलब मुझे उनसे बहुत हेल्प मिला। मतलब मैं पहले भी नहीं करा था, मैं पहले बार उनसे ही पढ़ा था, और वो माइक्रो और फार्मा बहुत इजी करा दिया। और प्रियांश सर तो मेरे फेवरेट है। वो तो मतलब जैसे उन्होंने जो बोला है मैंने बस वैसे ही करा है। और उनका नोट मतलब ये अब्दुल्ला बोला कि जो नॉन मेडिको उनको ही पढ़ा देंगे, वो ऐसे पढ़ा है। उनका कहानी चलता है नोट्स में, और इतना बढ़िया तरीके से मतलब चीज इसको एक पेशेंट की तरह समझाते हैं, वो याद रह जाता है कि हाँ पूरा याद रह जाता है। वो मतलब कहानी के रोल में समझाते हैं, वो बहुत अच्छा से समझ में आता है। और वो जैसे गाइड करते हैं ना, मतलब वो गाइड भी करते हैं, मतलब इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं, जो ना समझे उसको भी अच्छे से समझा देते हैं। We are very lucky at Arise to have such kind of जी amazing. सर, इस चीज की मैं तारीफ करता हूँ। Yeah, ये तो है true. And डॉक्टर अर्चना, आपके फेवरेट्स? सर मेरे फेवरेट, मैं जब अचीवर्स बैच ज्वाइन की थी वहां पे, तो मैंने बस प्रियांश सर को ही फॉलो किया है। मतलब उनसे डिसिप्लिन सीखना हो, पढ़ना हो, जो भी हो वो बेस्ट है। तो एक तो रहता है ना कि आप चीजें डिसिप्लिन वे में कर रहे हो तो बहुत इजीली निकल जाता है। तो वो मैंने सर से बहुत अच्छे से सीखा है। एट लास्ट तक हर एक चीज मैंने उनकी फॉलो करी थी, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। और अभी भी लगता है कि बस सर को सुनते रहो, चीजें फॉलो करते रहो, आगे लाइफ में सब चीज अच्छा ही होगा। तो सर का डायलॉग भी था अच्छे से कि हो जाएगा एफएमजी तो हर चीज पे मिट्टी डाल देना, सीमेंट डाल देना। तो वो वाला फेज सर का बहुत सब ठीक हो जाएगा, करना है अभी कर लो। तो वो सर का बेस्ट था कि अभी जो तुमको टाइम मिला है 6 महीने का, अपना 100% दे दो, बाकी जब खत्म हो जाएगा तो आप मस्ती करो, जो भी करो। तो वो सर का एक डिसिप्लिन वाला जो है ना, वो मेरे को बहुत सही लगता है। तो सर का वो था, तो वो बेस्ट थे सर। Dr. Zinat, anything from your side? Who were your personal favorites? Yeah. Sir, for me, first of all, you sir. फर्स्ट इंटरेक्शन, फर्स्ट टीचर, मतलब एक इंडियन टीचर एशियन में आने का, तो मेरे लिए आप थे। और थोड़ा पर्सनालिटी मेरे पापा से मैच करती है, तो एक आइडियल मेरे लिए डॉक्टर खलील, फिर डॉक्टर नदीम सर और डॉक्टर प्रियांश तो सर सबके फेवरेट है। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी सर। ये अभी मेरा सिलेक्शन होने के बाद मेरा एक फ्रेंड है, वो एम्स नागपुर इंटर्नशिप कर रहा है, तो उससे बात हुई मेरी। तो मतलब वो कांग्रेचुलेशन के लिए कॉल आई, तो उसने पूछा कहाँ से पीजी कर रही है। मैंने बोला अभी तो नहीं पता, देखते हैं कहाँ से करना है। तो ही इज लाइक कि कोई डॉक्टर प्रियांश है, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ। तो मैंने कहा वो हमारे टीचर थे, वो तो सर लाइक वो तो एशियन के मतलब अराइज के टीचर है। तो अच्छा तुझे पढ़ाया क्या? मैंने ऐसे, वो हमारे टीचर है। तो वो एक बहुत उनके लिए कि अच्छा वो तुम्हारे टीचर है, एफएमजी वाले को पढ़ाते हैं। मतलब वो एक हमें एफएमजी को डिग्रेड करने की कोशिश। मैंने बोला तुम मतलब आईएनएससीटी की प्रिपरेशन करो हमारे वाले सर से। वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। Really nice, really nice. मतलब वो I think the kind of results FMG students have got this year, yes. I think this competition is going to go to next level, both for NEET PG and INSET. ये बच्चे these are going to be different group of students. Please like कि तुम लोग को पढ़ने की क्या जरूरत है, हो गया तुम्हारा जब उनसे पढ़ लिया है तो। nice. मैंने बोला भी था कि जब सर से बात होगी तो मैं बोलूंगी सर अब नेक्स्ट क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है बता दो, नीट पीजी के लिए भी।
कौन सा है? Dr. Suneha, something from your side. Suneha, can you hear us? सर सबसे पहले तो सर आप वहाँ पे जब सबसे पहले एशियन में जब गए थे सर, 2-4 साल में एशियन का जो रिजल्ट हुआ है, इसके पहले अभी 2-4 साल पहले अगर एशियन का रिजल्ट देखा जाए तो क्या लेवल था, 2-3 बच्चे निकलते थे। लेकिन जब से एराइज वहाँ पे एशियन में गए हैं सर, रिजल्ट का अलग लेवल हो गया है, और वो सर सिर्फ आपकी वजह से है। थैंक यू पूरी एराइज और आपको सब, क्योंकि आपने पहले दिन में जब क्लास थी तो आप चीज बोला था कि वहाँ पे करवाओ जहाँ पे जरूरत हो। तो सर आपने, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे बहुत जरूरत थी और आपने वहाँ पे इतना सब कुछ किया, और बाकी सर टीएनटी राजीव धवन सर, उनकी एनटी मतलब अलग लेवल की, और किसी सबको याद हो जाए ऐसी सुधा मैम सर ऑप्था में एकदम कैसे नहीं होते कि जैसे जैसे लेवल का पढ़ना चाहिए, पूरा पूरा ऑप्था का एकदम अलग, पूरा बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया। तो सारे टीचर, और नदीम सर की तो बात ही अलग है सर, वहाँ पे तो हम लोगों को टाइम कम था तो सर 3 बजे तक पढ़ाए थे एशियन में, वो तो याद ही रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो सर सारी फैकल्टीज, मुझे तो मतलब हर एक सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि सारे जो होते ना चुन चुन के कि नहीं ये इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर बेस्ट है, मुझे ऐसा लगा कि सारे कोई एक भी टीचर ऐसा नहीं किया नहीं इनसे नहीं, मतलब सारी फैकल्टीज एकदम चुन चुन के बेहतर है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि मैं ये कहूँ कि नहीं ये फेवरेट है, या ये सारे ही मेरे फेवरेट है। ये है। थैंक यू। एंड एशियन के बच्चे भी इतने हार्ड वर्किंग बच्चे थे कि एक उनके लिए कुछ करने के लिए भी मन करता था। आई यूज्ड टू गेट अ डिफरेंट वाइब फ्रॉम दीस स्टूडेंट्स, एंड सिंसियर भी थे, हार्ड वर्किंग भी थे, एंड very 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 disciplined also, so we enjoyed the डिग्री को आपने स्कॉलरशिप दिलवाया था। nice राइज में। yes तो भाई ऐसा था कि हम लोगों को ये था कि पढ़ना तो है लेकिन कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है ये नहीं पता था। लेकिन जब से एराइज वाले गए हैं तब से ये हो गया, नहीं इतना करना है, ये इस डायरेक्शन में जाना है, तो बस यही था। सर वो जो गाइडेंस मिला सर, वो लड़के आज लेके सर ना वहाँ पे, जब एराइज की टीम नहीं रहती है सर, टीचर्स नहीं रहते हैं, फिर भी आज वहाँ लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी के अलावा जो हॉल होती है वो पूरे भरी रहती है। अभी सर एक माहौल क्रिएट हो गया सर, वो माहौल की जरूरत थी वहाँ पे और हो गया। आई थिंक इतने सारे सीनियर्स जब पास होते हैं और आप लोग का सबका जो गाइडेंस होता है, एंड ऑल ऑफ दिस एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, एक ओवरऑल एज अ यूनिवर्सिटी आल्सो, राइट? ऑल ऑफ यू आर alumni of that university, and that will always all your success, all your contributions will reflect onto the institute and to the juniors or the future juniors also. And Dr. Pranav, आपके favorites like from your side? सर पीएसएम मेरे लिए एकदम पीस ऑफ केक हो गया बिकॉज ऑफ मोहित सर। मोहित सर ने जो वहाँ एराइज में क्लास एशियन में लिया था, उन्होंने जैसा पर क्लास लिया था सर, मैं वैसा पीएसएम आज तक नहीं पढ़ा था। मैंने 2 बार पीएसएम पढ़ लिया था उससे पहले, लेकिन मुझे वो जो कॉन्सेप्ट दिए वो पढ़ाते थे ना, लिख के पढ़ो, वो बोलते थे हमेशा लिख के पढ़ो, कॉन्सेप्ट नहीं ये नहीं दूंगा, नोट्स नहीं दूंगा, लिखवा के रखे ना। और वो 90 पेज हुए मेरे, मैं थोड़ा सा घना लिखता हूँ, 90 पेज हुए, और 90 पेज में लास्ट तक करते रहा। मेरे पीएसएम में बहुत कम गलती हुआ था, वो था। और प्रीतेश सर भी काफी अच्छे लगे मुझे, उन्होंने शॉर्ट में जितने सर्जरी हो सकता है कवर कर दिए, पूरे कंप्लीट कर दिए। जो हमारे से स्टूडेंट जो सर्जरी में काफी वीक थे, उनके नोट्स कंप्लीट करके बार कंप्लीट करे गए, और वो ज्यादा 5-6 गलत हुए, लेकिन मैं मानता हूँ उतने बड़े सब्जेक्ट, उतना हार्ड सब्जेक्ट 5-6 गलत होना बहुत बड़ा चीज है। कि हाँ प्रीतेश सर, सुधा मैम, आप सर, आप तो मतलब थ्रू आउट जर्नी हमारे रहे हैं, तो आपको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट ये जो टीम थी, टीम है जो वो परफेक्ट आइडियल टीम बोल सकते हैं सर। ये आइडियल टीम है, बस ये कंटिन्यू करती है, आप इस पर ध्यान देते हो तो देन आप बेस्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर आकाश, आपके लिए सर मेरा नंबर तो हालांकि लास्ट में आया है, तो जो जिस फैकल्टी के बारे में मुझे बोलना था भूल चुके। मैं बस 2-3 नाम जो मैं मतलब जेन्युइनली मुझे लगा कि यार ये मेरे को बेनिफिट हुआ, जो कि मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन नहीं हुआ, ज्यादा कभी बातचीत भी नहीं हुई। एक मैंने ऑलरेडी बताया, जजीर सर ने जो डरमा पढ़ाई थी वो मेरे फेवरेट, मेरे फेवरेट टीचर तो ठीक है, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हो गए थे। एक ये हो गया डरमा। टीचर सर का मैंने बताया, उन्होंने फिजियो पढ़ाई थी। और एक और सर जो ऑर्थो मैंने पढ़ी सर, वो सर से मजा आ गया क्योंकि कभी पढ़ी नहीं थी वो ऑर्थो, बहुत अच्छे से पढ़ी। स्टार्टिंग में मुझे इतनी समझ में नहीं आई थी, बट एट द एंड में सबको भी कहता था, मैं फैन हो गया था सर का। एक बार तो मैंने शायद 45 मिनट में वो बुकलेट पूरी पढ़ दी थी सर की, वो बहुत बड़ी बुकलेट है वो। तो ये फैकल्टी कहूंगा। और आपका सर ये था कि आपसे कभी पढ़े नहीं थे पहली बात तो ऑफकोर्स ये तो पता था कि यार प्रियांश मतलब दूसरा सब्जेक्ट, खलील सर से दूसरा सब्जेक्ट पढ़े थे हम लोग, एक बार एनाटॉमी पढ़े थे आपसे,
तो आपकी सर बेस्ट थिंग मुझे ये लगी कि आप साथ में जो रिवीजन कराते थे, थोड़ा कंटेंट पढ़ाने के बाद जो रिवीजन कराते थे, वो बहुत हेल्पफुल हो जाता था लास्ट में। और दूसरी जो चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मुझे पर्सनली मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मेरा इंटीग्रेशन होता है सर। और वो इंटीग्रेशन जो आपने कराया सर, मैंने जानता कि कोई उस तरह से करा सकता है। मैंने इवन आप ये मानिए कि मैंने लास्ट में सर्जरी के टॉपिक्स भी रेडियो की बुकलेट से रिवाइज किए हैं। मैंने और प्रणव दोनों ने, हमने यूरोलॉजी पूरी की पूरी आपकी पढ़ी। उसके अलावा पीडिया की टॉपिक्स जो हालांकि सर का याद था, बट आपने जो हमको बताया कि ओलिगेमिया का जो फील्ड होती है वो कब होगी और वो सब चीजें, ये तुम्हारे जितनी भी आपके टॉपिक्स थे ना सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर आपका एक तो कंटेंट और एक इंटीग्रेशन, ये दो चीजें, और ये बाकी दो फैकल्टी। इसके अलावा सर एक चीज जरूर अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, प्रियां सर तो ऑफकोर्स, प्रियां सर के बारे में तो वो तो उनकी बात ही अलग है, वो अलग फैकल्टी है। और मुझे उनके सब्जेक्ट पे तो कमांड उन्होंने करा ही देते हैं, वो उनका जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और यही सब चीजें हैं सर। और मुझे बस वही था कि सर मेरे को बड़ा मजा आया सर ऑफलाइन पढ़ के, सारे फैकल्टी से पढ़ के बहुत। हाँ, और लास्ट थिंग मैं ऐड करना चाहूंगा, रितेश सर का मैं बोलना चाहता था लेकिन प्रणव ने बोल दिया, क्योंकि हम लोग दोनों फैन हो गए थे उनके। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आज तक रितेश सर से हमेशा हमने ऑनलाइन पढ़ा था, और वो जो डिफरेंस हमको लगा ऑनलाइन ऑफलाइन का, वो जो डिफरेंस था ना, हम लोग इवन कहते थे कि यार ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा ही बंदा आगे पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि वहां नहीं आते थे, हमें जो मजा आता था। और सर बहुत प्यार से पढ़ाते थे, बहुत वेल स्पोकन है सर, वो वेल स्पोकन है, सॉफ्ट उनकी वॉइस है, तो सर वो समझ में आया और वो सर्जरी काम आई, क्योंकि हमको नहीं आती थी सर। और सर क्या बोलते हैं, प्रणव और अर्चना, ये दो लोगों ने तो इतनी बार पढ़ लिया था। अर्चना ने तो पूरी बुक काली कर दी थी पढ़ के, इतना बार लिख दिया था सर्जरी का। और वो वही था सर, वो फैकल्टी से बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि फैकल्टी अगर ठीक होती है ना, तो वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा आने लगता है। ये सर मेरे साथ। और बाकी नदीम सर का क्या ही बोलना, तो सर बचपन से, मतलब अब तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो इतना ज्यादा हम लोगों से फ्रेंडली हो गए थे ना, कि हम उन्हें फ्रेंड्स ही कंसीडर कर लेते थे सर। अभी कई बार बातचीत में भी ना उनसे, अभी उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, तो वो एक ऐसी कन्वर्सेशन चल रही थी कि मैंने उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया इवन। और वो उनका वो है सर, उनका नेचर बहुत शानदार है। और कंटेंट वाइज फैकल्टी सब ये, और बाकी सारे फैकल्टी अच्छे हैं सर, नो डाउट। मोहित सर जो प्रणव ने बताया, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट सिखाए, वो जरूरत नहीं पड़ी उस चीज को पढ़ने की। यहाँ कॉन्सेप्ट लगे सर, मेरा जिस सब्जेक्ट में नहीं लगनी चाहिए, मतलब लोग बोलते हैं कि याद करना है सर, हम लोगों ने पीएसएन कॉन्सेप्ट से की सर, वो चीज अच्छी लगी। दैट्स ऑल सर। रियली नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग की एक जो ग्रुप की जर्नी थी, और जो ग्रुप के जो काफी डेलिकेट मोमेंट्स थे, I think the support that you provided to each other, the personalities that you brought into each other's association in the group, I think this all contributed. And having a good group, as I keep always saying, that people pass in groups and fail in group. I can see a lot of discipline coming from Dr. Suneha, Dr. Archana, Dr. Zeenat, and lot of fun coming from Dr. Sunil, Dr. Abdullah, डॉक्टर नितेश जो डे स्कॉलर रह के जो सपोर्ट सिस्टम बना के रखते थे सबके लिए, एंड डॉक्टर जीनत है प्रोवाइडिंग ऑल द मेडिसिन एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल द ग्रुप, डॉक्टर प्रणव एंड डॉक्टर आकाश बीइंग दैट दैट calm and composing and relaxing group, and the people whom they can help each other with the doubts and GTs. I think it's a very well formed group and something that really helped. And I really wish that you all continue to progress, continue to get more laurels and success, and really happy. And we will remember your journey and with Arise, and we'll miss you at Arise also. एक बात बोलूंगा कि हमने हाथ पकड़ के चलवाना सिखाया यहाँ तक, और एक टाइम आएगा जब हम आपको हाथ भी छोड़ेंगे और आपको दौड़ते हुए देखेंगे, तो अब आपकी दौड़ देखने का टाइम है अभी, ठीक है? तो really happy for each one of you. And we were hand holding you so far, and now we want to see you running and achieving greater things in life. And we all wish that you become much more progressive, much more successful than all of us, and we'll be happy to see your progress in the future. Okay, all the best to everyone. Thank you, sir. काफी बात करें. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir. Bye.